Good morning, friends. Myself, C. Arun Ahuja, General Secretary of Tax Law Educare Society, welcome you all to this Zoom session. Creating a legacy is the job half done. What's equally important is to protect that legacy. There are a lot of myths and misconceptions about HUF. क्या दोस्तों क्या HUF तभी एग्जिस्टेंस में आ सकता है जब HUF किसी एसेट्स का ऑनर हो? दोस्तों क्या HUF का एग्जिस्टिंग मैरिज पे ही हो जाता है या एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड? ये कुछ मिथ्स और HUF के बारे में जिसके बारे में डॉक्टर गिरीश आहूजा जी आज हमको डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग, और कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिंग और रजिस्टरिंग दी HUF इज फेयरली इजी, ये बहुत आसान काम है, बट कॉम्प्लिकेशंस में अराइज लेटर। यू ओपन ए पंडारा बॉक्स व्हेन यू क्रिएट HUF कि आप HUF करने के बाद वो उसकी जो सक्सेशन एक्ट है उसके बारे में जो डिस्कशन करना है, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसके बारे में एक चाहिए। कुछ दिन पहले हमने डॉक्टर रवि गुप्ता जी का हमने वेबिनार किया था विल के ऊपर, वो भी आप हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो अब let us discuss various aspects relating to ownership, succession of assets with special reference to HUF in today's session. Now I invite my guru, Dr. Ravi Gupta, the president of the society, for opening remarks and request him to welcome chief patron of our society, Dr. Girish Ahuja, our Bhish Pitama. Welcome, Dr. Ravi Gupta. Thank you, Raji. Sir, a very warm welcome to you, sir. Girish sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you very much. And very आपस में हम करते थे. You scratch my back, I scratch your back. This is happening. Sir, very warm welcome to all the participants also. We are making full use of the time available with us and the technology available. And this is a very good feature that we have found during these days to keep the process of learning keep going. And when we have speakers like Dr. Girish Ahuja, participants are almost willing to join any time that we inform them about the program. And it's a pleasure that we have again Dr. Girish Ahuja speaking to us today on this topic of succession planning with reference to HUF also. Friends, I feel what Girish Ahuja ji will be telling you is for your consumption, not for his implication. डॉक्टर गिरीश आहूजा जी ने अपना लाइफ का गियर जो है वो एक रिवर्स गियर में डाल रखा है। वो द लास्ट 10 इयर्स, अगर 64 साल से आज उनकी उम्र 74 होनी चाहिए थी, बट फ्रॉम 64 टुडे इज 54। ठीक है भैया। चल रहे हैं तो सक्सेशन प्लानिंग की उनको जरूरत नहीं है, बट यस, फॉर आवर कंजम्पशन, फॉर आवर नॉलेज, ही विल बी deliberating on this topic today. HUF is another topic which is a very mysterious topic. HUF, as you would be aware, is a unique concept, I think, which we have only in our country. In no other country have we found this concept as a taxable entity, and therefore, whatever provisions we are going to study about HUF, I think these will be unique only to taxation in India. And moreover, Income Tax Act does not deal with the concept of HUF as is dealt with in the other laws. And HUF is more of a personal law, emanates from the Hindu practices from which the HUF concept has been derived from. And sir will deliberate upon this and tell you how HUF comes into existence, whether I have to create an HUF, and if I have an HUF, what will be the taxability of that. I think with that, we will invite Dr. Girish ji to start the deliberations of today. Thank you, sir. Good morning to all. President of the Tax Law Educare Society Ravi Gupta ji and Secretary Arun Ahuja ji. Gupta रह जाते हैं सारे जब भी आप बात करते हैं, लेकिन Arun Ahuja ji, of course, and of course sitting in front of me, Dr. N.K. Gupta also, he is also watching this program. We have Ashwini Jindal from Jalandhar, and we have also from Chandigarh Mr. अभी बताया मैंने आपको कल के, और बाकी सब लोग जो बैठे हैं मैं सबको
प्रणाम है, प्रणाम मेरे को करना सीख गया इसलिए कि मुझे एसोसिएशन आ गई रामदेव जी से, और रामदेव जी प्रणाम ही करते हैं, मुझे भी प्रणाम करते, तो मैं भी प्रणाम करने की आदत पड़ गई है थोड़ी सी, और कोई ज्यादा बात नहीं है। लेट मी टेल यू सर, यू हर्ड डॉक्टर रवि गुप्ता ऑन दैट डे एंड दैट वाज रिगार्डिंग विल, लेकिन ना तो डॉक्टर गुप्ता ने अभी तक विल बनाई है और ना ही मैंने बनाई है। कहते हैं पढ़ाना, किसी को बताना, प्रीच करना, लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक्ट करना सबसे बड़ा काम है। इनको मैंने भी कहा चलिए हम विल बनाते हैं, हाँ ठीक है, इनकी एक ही बेटी है और बेटी है तो क्या कह रहे हैं उनको जाएगा, लेकिन विल के क्या फायदे हैं वो उनको इन्होंने ही बताए थे। इन्होंने अभी तक विल नहीं बनाई है और विल बना के रजिस्टर भी नहीं कराई। पहले बनाएंगे तो रजिस्टर कराएंगे ना। अरे विल रजिस्टर कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड विल के कई फायदे, ना इन्होंने बनाई ना मैंने बनाई। बातें हम बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। कहते दूसरों को तो हम समझा रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, इसलिए बोल रहे रवि जी को मैं बार बार, ताकि ये तैयार हो जाए, हम हफ्ते 10 दिन में ये काम जब खत्म शुरू हो जाए तो ये शुरू कर दें कि ये बिल बनाकर रजिस्टर करानी है। सर रजिस्टर कराने का फायदा है, अदरवाइज रजिस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल ना रजिस्टर में क्या है, आपको इंडिया में सिर्फ 3 जगह छोड़कर बाकी कहीं प्रोबेट लेनी, यू डोंट हैव टू टेक एनी प्रोबेट फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट 3 प्लेसेस। One place is of course Mumbai, Maharashtra. Another is Calcutta, Bengal, and third of course is Chennai. In Maharashtra, when you take a probate, you have to pay only 75,000 rupees maximum amount. There is a slab, but maximum is 75,000. In West Bengal, the maximum is 50,000. In Chennai, or we call it as Tamil Nadu, it is 25,000. But in Delhi, there is no requirement. Other places, there is no requirement for taking a probate. Probate तो तभी ली जाती है, we take probate only when there is a dispute. If there is no dispute, there is no reason for going for a probate. But sometimes what really happens is, in a bank, where sometimes they say, no, please bring a probate. तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, whatever you have written a will or you are not a written a will, whatever bank account you have, first thing, have a joint account. And third, have a nominee also in that account, so that you may not have difficulty in taking the money from bank back from bank after somebody died. Now it is difficult for taking money. Sometimes you take registered will also. Still they insist, please bring the probate. Normally they should not insist, but they are in the habit of doing it because they are in Bombay. People go for probate. They don't realize that there is no need of a probate. A registered will is an okay will, no problem. But let me tell you, for mutation and for others, there is absolutely no necessity. They will do it on registered will also, and they will do it on succession also, which I'll talk to you just now. But in a case you have a bank account or any other account, financial, whatever, you have shares, you have what you call a mutual fund, you have bank account, all these places, it is better to first have a joint account with normally with your spouse. If you don't have spouse, then with anybody else, with your spouse. And secondly, nominee should also be there. Sometimes we don't give name of the nominee there. Nominee should. Let me tell you, nominee is not the owner. Nominee is not the owner. Nominee is only a trustee. Only as a trustee. So that day he spoke to you about registration bill or will. One more point I want to add, जो मुझे भी पता लगा recently, that if you have not got your will registered, this can be registered even after the death of the person. It can be registered even after the death of a person. You know, the beneficiary can go and get that will registered. The only advantage of registered will, I tell you, is in this case will be the banks may agree to that registered will, or even what you call the transfer of property will be simplified in that manner. If you have a registered will, you can get it registered even after the death also, and there is no time limit for that. Only difficulty, which was the recent amendment in the 2007 in the Registration Act 1908, where you have been told that when you get your will registered, if I want to get my will registered, I have to go there personally. 2 witnesses are also supposed to go with me personally, and they have all that photograph and everything. So for that amendment was not there earlier. Now it is a requirement that if you want to get your will registered, although it is not necessary to get your will registered, Registration Act does not talk about
registration of a will, but it is better if you get the will registered. But if you go for registered will, let me tell you, you have to go personally there. Otherwise, you have to call them. If there are if it's not possible for them, they charge a nominal fee. You have to go call them. Otherwise, you have to go there with your 2 witnesses and get the will registered there. They take a photograph and everything. लेकिन मैं अब क्या आ रहा हूँ, कहते तो हम बहुत है करा लेंगे, लेकिन 1 मिनट का भरोसा नहीं है किसी की जिंदगी का, 1 मिनट का भरोसा। तो हमारे पास एक और एक्ट है। देखिए, देयर आर 2. हिंदू लॉ इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ। हिंदू लॉ कोई कोडिफाइड नहीं है, इट गोज बाय कन्वेंशन। इवन मुस्लिम लॉ इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ। We have some codified law for Hindus. Earlier was Special Marriage Act 1954. Then it came Hindu Marriage Act 1955, Hindu Adoption Act, Hindu Guardian and Minority Act. ये codified act हैं. लेकिन succession के लिए there are 2 codified act for Hindus. One is called Indian Succession Act 1925, जो रवि जी ने उस दिन आपसे बात करी. That is Indian Succession Act 25, that you write a will. You write a will. If you don't write a will, then we have another codified law, Hindu Succession Act 1956. देखिए, जब intestate, whenever there is an intestate death, that means you have not written a will, then the property will pass on to the legal heir as per Hindu Succession Act 1956. If I write a will, it is my will, my wish, whichever way I want to give my property to any person, to relative or non-relative, it is all my will. But if I don't write a will, what is the law prevailing in this country? It is a codified law for Hindus. Again, I have told you, it is for Hindus. And what do Hindus? Hindu means who follow the Hindu religion. It includes Arya Samajis also. It includes cult of that Brahmo or Prarthana or Lingyar. They also include Veer Shaivya. They are part of Hindus. Let me tell you, Hindu, a child born to parents who are Hindus, or both parents are Hindu, the child is also called Hindu. If both parents are Hindu. If one of the parent is Hindu, the another parent is not an Hindu, then how the child was brought up? If they were brought out as per the Hindu religion, as per the Hindu convention, then he will be called Hindu. Anybody who converts himself to a Hinduism is also called Hindu. And anybody who has reconverted, first he was Hindu, then he converted to some other, then he reconverted, is also called Hindu. So I was born with my both parents are Hindu, so I am Hindu. My both parents were Hindu, so I am Hindu. So Hindu is by religion. So Hindus includes Buddhists, Sikhs, and Jains also. That is, those who follow the religion of Buddhism or Jainism, or they follow the religion of Sikhism, they are also called Hindu. Now I'm coming to, suppose you have not written a will, or if you have written a will for certain assets, for other assets you have not written a will. Because you can write a will for all the assets, which you may acquire also in future. You can write a will for that, which you may acquire in the future. But suppose you have not written a will. You have not written a will, or you have written a will only for few items. Then we have very important section, Section 8 of the Hindu Succession Act. Section 8 to Section 13 talks about death of a male Hindu. And Section 14, 15, 16 of the Hindu Succession Act 1956 talks about death of a female Hindu. Now I'm taking self-acquired property, my property. Please try to understand. Where a Hindu male dies, intestate means without writing a will. His property, his estate, his assets will go to his legal heir of class 1. Legal heir of the class 1, please, I'm voting more. Legal heir of the class 1 in their individual capacity and in equal ratio. Please note 2 very important points. If I die, I can't say you, because everybody has to die, but normally I give the example of you and you do this thing, you. But today I'll give example of myself. If I die intestate, my assets will go to my legal heir of class 1.
but in their individual capacity. Please note the word individual capacity and not in as HUF. And equal ratio, I'll tell you that. But suppose I have 4 legal heir of class 1, 25, 25, 25, 25. I have 3 legal heir of the class 1, 1/3, 1/3, 1/3. I have only 2 legal heir of the class 1, 50, 50. I have only 1 legal heir of the class 1, 100%. 100% go to him. But suppose there is no legal heir of the class 1. एक भी नहीं है, no legal heir of the class 1. It will go to the legal heir of class 2. Legal heir of the class 2, and in class 2 there are different entry. First entry, second entry, third entry, fourth entry. Entry wise equal ratio. I'll give you legal heir of class 2. Now legal heir of class 2 comes only when there is no legal heir of the class 1. Now let us take another case. There is neither a legal heir of class 1 nor a legal heir of the class 2. Then it will go to agnates. Agnate means blood relation of brother, of father. It will go to agnates of father. But suppose there is neither from class 1 nor from class 2, and now nobody is from agnates also. Then it will go to cognates. Cognates means mother relations, blood relation. It will go to cognates. अगर क्लास 1 का भी नहीं है, क्लास 2 का भी नहीं है, एग्नेट्स भी नहीं है, अरे कॉग्नेट्स ही नहीं है, तो मैं कहता हूं तो इस दुनिया में कर क्या रहा है, आया किस लिए? तेरा तो कोई है ही नहीं. जब तेरा कोई है ही नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी. गवर्नमेंट विल टेक ओवर दैट. ये सोच के चलिए, ये लॉ है कि अगर तो आपका क्लास 1 है तो ओनली क्लास 1. इफ नो वन इन क्लास 1 then class 2. If no one in class 2, then agnates. If no one is in aggregate, then cognates. If no one there, government of India. This is the law of the land. I am coming back to you. Who are the legal heir of class 1? सब पूछते हैं class 1 में कौन आता है? Number 1, wife. Number 2, children, both sons and daughter. Children. And number 4, there is one more. वो 2 को मैंने सन डॉटर को अलग कर दिया, इसलिए 2 and 3. Number 4, one more, and she is mother. Mother is a legal heir of class 1. She will get the equal share of what others get. Suppose I have 2 sons, wife and mother alive. 1/4 will go to wife, 1/4 will go to son, 1/4 will go to daughter, and 1/4 will go to mother. Whether mother is dependent or independent, it does not make any difference. Mother gets, father does not get. This is the law of the land. Mother gets equal share. Wait a minute. If mother is not alive, my mother is not alive, then what will happen? If she was alive, she would have got the share. If she is not alive, nothing, no calculation for mother. Then suppose I have 2 children and wife. 1/3 to the wife, 1/3 to the son, 1/3 for the daughter. Suppose I have 3 children. 1/4 for the wife, 1/4 for first child, 1/4 for second child, 1/4 for third child. जितने भी बच्चे हैं सबको इक्वल मिलेगा. 1/4, 1/4, 1/4 उनका हो गया, वाइफ का. This is number 1. Number 2, let's say the wife is not alive. I lost my wife about 4 years back, approximately 3.5 years back. And the wife is not alive. If she had been alive, she would have got it. If she has predeceased me, nothing, no share calculation for wife. It is only the children who will get it. Wife is not there. If she had been there, she would have got the share. Mother is not there. If she had been there, she would have got the share. Both are not there. Now my children will get it in equal ratio. Equal ratio. If there are 2 children, 50-50. 3 children, 1/3, 1/3, 1/3. 3 से ज्यादा आजकल तो भूल जाओ. पुराने जमाने की बातें अलग थी. 5-5, 10-10, 12-12 भी होते थे. अब तो 2 ही बहुत है. अब तो लोग एक ही करने लग गए. पता नहीं क्या हो गया, एक ही करने लग गए. लेकिन एक में भी कई प्रॉब्लम है. मैं बता दूंगा आपको कि बाप और बेटा उनकी बनती नहीं है. कई बार ऐसा होता है, मैं बताता हूँ. मैं जरूर बेटा नहीं कह रहा, वाइफ भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, मैं नहीं कह. लेकिन
कमिंग बैक कि जितने भी बच्चे सबको इक्वल मिलेगा। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, भगवान ना करे अगर एक सन था, अनमैरिड था, ही प्रीडिजीज द फादर, अनमैरिड मैंने बोला, ही प्रीडिजीज द फादर, फादर की डेथ से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, तो सन का शेयर कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं कैलकुलेट होगा अगर उसकी डेथ पहले ही हो गई। डॉटर थी, अनमैरिड थी, शादी नहीं हुई थी अभी, एंड शी प्रीडिजीज द फादर, उसका भी शेयर कैलकुलेट नहीं होता, उसका भी केयर कैलकुलेट नहीं होता। सो ये पॉइंट अब आया, भगवान ना करे बेटे की डेथ हो गई और उसकी, वो मैरिड था, वो मैरिड था, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, व्हाट वुड हैव बीन द शेयर हैड द सन बीन अलाइव will go to his legal heir, in equal ratio, और प्री डिजीज सन के जो लीगल हेयर होंगे उसमें होगा विडो ऑफ द प्री डिजीज सन एंड चिल्ड्रन ऑफ द प्री डिजीज सन। पहले तो उस सन का क्या शेयर होता अगर वो जिंदा होता, मर गया बेचारा, शादीशुदा था, व्हाट वुड हैव बीन हिज शेयर, सपोज अगर वो जिंदा होता उसका 1/3 बनता है, तो वो 1/3 शेयर उसके बच्चों को और उसकी विडो को जाएगा, इक्वल रेशियो। 1/3 का मतलब 1/3 अबाउट डिवाइड बाई 1/3, 1/9, 1/9, 1/9, इक्वल रेशियो में जाएगा, उसके विडो को, सन को और डॉटर को। अगर ज्यादा है सन डॉटर, वो भी इक्वल रेशियो, जितनी भी डॉटर है प्लस द विडो, इक्वल रेशियो में जाएगा। अगला बोल रहा हूं, प्री, देखिए कितना भगवान से अनफॉर्चुनेट हो जाता है, प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज सन, सन भी प्री डिजीज है, उसका सन भी प्री डिजीज हो गया बिफोर द डेथ ऑफ द ग्रैंडफादर, प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज सन, जितना शेयर उसको मिलना था दैट वुड गो टू हिज लीगल हेयर, और उसके लीगल हेयर होंगे उसकी विडो और उसके बच्चे, प्री डिजीज सन के बच्चे। ये मैं सन की बात कर रहा था, अब मैं बात करने जा रहा हूं pre-deceased daughter married, pre-deceased daughter married, what would have been her share had she been alive? That will go to her children, please, to her children, husband को नहीं। वहां पर विडो को जा रहा था, सन के विडो को, या हस्बैंड को नहीं मिलेगा, उसके चिल्ड्रन को मिलेगा। what would have been her children, देखिए हस्बैंड नहीं आएगा इसमें, हस्बैंड आएगा कैटेगरी देखेंगे, यहां नहीं आ रहा, चिल्ड्रन, एंड प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज डॉटर, उसके चिल्ड्रन, प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज डॉटर ऑफ ए प्री डिजीज डॉटर, उसके चिल्ड्रन को मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये पहली कैटेगरी में आते हैं। मैं एक और पॉइंटर बता दूं, ये मिथ है, पोते का अपने दादा की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक उसका फादर जिंदा है पोते का कोई हक नहीं है। फादर भगवान ना करे डेथ हो जाए तो पोते का हक आता है, क्योंकि वो प्री डिजीज सन के चिल्ड्रन माने जाते हैं, या पोती का भी हक नहीं है। सिर्फ बेटा, बेटी, बीवी, मां, अगर वो जिंदा हैं तो नीचे नहीं जाता। ये मिथ है। एचयूएफ अलग चीज है, एचयूएफ में बाई बर्थ आ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मेरी प्रॉपर्टी का हक मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के पास नहीं होगा अगर मेरे चिल्ड्रन अलाइव हैं। हाँ, जो भगवान ना करे कोई ऐसा चाइल्ड है जिसकी मैरिज हो चुकी थी और वो प्री डिजीज हो चुका है, तो जो शेयर उसको मिलना था वो उसके बच्चों को जाएगा। अगर सन था तो उसकी बीवी को भी जाएगा सन की। अगर डॉटर थी वो प्री डिजीज हो गई और मैरिड थी तो उसके बच्चों को जाएगा, हस्बैंड को नहीं जाएगा। मेरे ख्याल मैंने काफी क्लियर कर दिया है कि क्लास 1 के लीगल है। अगर कोई भी फिर भी डाउट होगा तो आप दोबारा पूछ लेना, लेकिन क्लास 1 में मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर माँ नहीं है तो उसका कोई शेयर नहीं, बीवी नहीं है तो उसका शेयर नहीं है, अनमैरिड सन था, अनमैरिड डॉटर था जो प्री डिजीज फादर के हो गया तो फादर की प्रॉपर्टी में उसका कोई शेयर नहीं है। मैरिड सन था, मैरिड डॉटर थी, अगर वो जिंदा है
तो उन्हीं को मिलना है, पोतों को, पोती को, नाती को, नातों को कोई हक नहीं है। लेकिन अगर डॉटर सन मैरिड था, उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, प्री डिजीज द फादर, तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को, उसके चिल्ड्रन को और उसकी विडो को मिलना है, सन की विडो को। डॉटर था, डॉटर की मैरिड हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, तो बच्चों को मिलेगा, हस्बैंड को नहीं मिलेगा। अगर बच्चे नहीं है तो वो कैटेगरी 1 में नहीं आएगा, हस्बैंड को नहीं मिलना है। उसके प्री डिजीज डॉटर अगर मैरिड है तो, अब प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज सन मैंने बोला, तो उसके बच्चों व्हाट कितना, जितना शेयर उनका मिलता पर कैपिटा, पर स्ट्राइप लेकर फिर हम उसको पर कैपिटा डिवाइड करते हैं। मैं जान के थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो उनको जरा आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो मैं स्पीड में बोल जाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये सबके काम की चीज है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब अगला पॉइंट सुनिए। लेट अस अज्यूम कि क्लास 1 का कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं, वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, या ये वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, मदर की भी डेथ हो चुकी है, बच्चों की भी, और यहां अनमैरिड था, अनमैरिड था, अगर उसकी डेथ हो जाती है और वो उसकी डेथ हो गया खुद की अपनी, वो अनमैरिड था और उसकी डेथ हो जाए, तो वाइफ तो है ही नहीं, बच्चे तो है नहीं, उनको मिलना ही नहीं है। तो किसको मिलना था? उसकी मदर को मिलना था क्लास 1 में, 100% मदर को मिलना था क्लास 1 में। अगर वो मैरिड नहीं था सन, तो उसकी मदर को 100% मिला। मेल मेंबर की बात कर रहा हूं, फीमेल की अभी बात नहीं कर रहा। वो अनमैरिड था और उसकी डेथ हो गई, तो वाइफ होने का मतलब नहीं है, चिल्ड्रन होने का मतलब नहीं है, तो मदर को मिलेगा क्लास 1 में, और वो नहीं है तो फिर क्लास 2 में जाएगा। लेकिन एक मैं बता दूं, चाइल्ड का क्या मतलब है। चाइल्ड चाहे मेजर हो या माइनर हो, चाइल्ड चाहे नेचुरल हो चाहे अडॉप्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अडॉप्टेड अंदर हिंदू अडॉप्शन है, अगर अडॉप्टेड हो कोई फर्क नहीं। चाइल्ड मैरिड हो या अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी चीज बताऊं, चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइल्ड कभी इलेजिटिमेट नहीं होता, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट्स विच इज इलेजिटिमेट। चाइल्ड इज नॉट टेकन एज इलेजिटिमेट, रिलेशनशिप द पेरेंट्स इलेजिटिमेट है। मैं तो कई बार बताता हूं सब जगह कि हमारे यहाँ आजकल बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं और बाप कोर्ट में पैदा होता है। आजकल बाप कोर्ट में पैदा हो रहे हैं, आपने देखा ही है। कौन सा बाप, शायद पहली बार आपने सुना होगा, कोर्ट में पैदा हुआ, डीएनए कराकर उसने मान लिया था कि ये मेरा बेटा है। बेटे को बाप का प्यार नहीं था, बेटे को बाप की जायदाद का प्यार था कि अगर मैं प्रूव हो जाऊं कि मैं इलेजिटिमेट चाइल्ड हूं तो मेरे को वो शेयर मिल जाएगा, अगर वो इंटेस्टेड डेथ। बाप को तो इतना प्यार था, और बाप कोर्ट में पैदा हो गया तो ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, कोर्ट में पैदा कर सकते हैं कि आप बाप हैं हमारे। ये पहले बता दूं, मैंने इशारा किया है, समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। तो कोई भी पैदा हो कह सकता है ये मेरा बाप था, और वो बाप अगर प्रूव हो गया तो फिर उसका हक है इंटेस्टेड डेथ में, उसमें नहीं है। रजिस्टर्ड विल में तो जिसका नाम होगा वही होगा, और रजिस्टर्ड विल में आप अगर, या विल में आप अगर चिल्ड्रन लिख देंगे तो इलेजिटिमेट चाइल्ड का हक नहीं है। लेकिन अगर आप चिल्ड्रन लिख देंगे, मेरे चिल्ड्रन, तो इलिजिबिलिटी का हक नहीं है विल में। लेकिन अगर आप लिख देंगे कि वो कोई और भी, तो फिर उसका भी हक है, मैं बता रहा हूं। लेकिन इंटेस्टेड डेथ में इलिजिबिलिट चाइल्ड का पूरा हक है, मैं पहले बता दूं। सो चाइल्ड चाइल्ड होता है, लेकिन स्टेप सन का हक नहीं, स्टेप चाइल्ड का नहीं, सन का हक है। फुल ब्लड का है या हाफ ब्लड का है, यूट्रीन ब्लड का नहीं है। यूट्रीन ब्लड समझते हैं? यूट्रीन ब्लड का वो है जो बीवी किसी और हस्बैंड का लेके, बच्चा लेके साथ में आ जाए, वो यूट्रीन ब्लड वाला भाई होता है। जो बीवी की ऑलरेडी कहीं शादी हुई हो और उसे दूसरी शादी करा ले औरत, सॉरी बीवी कह रहा हूं, एक लेडी की ऑलरेडी शादी हुई हो, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और लेडी ने दोबारा शादी करा ली दूसरे आदमी से, जो बच्चा वो लेके आएगी साथ में, वो यूट्रीन ब्लड माना जाए। उसका कोई हक नहीं, उसका कोई हक नहीं है, मैं बता दूं। ओनली आपका अपने बच्चे का हक है। अगर माँ स्टेप है तो माँ स्टेप का कोई हक नहीं है क्लास 1 में। अगर माँ स्टेप है तो क्लास 1 में उसका कोई हक नहीं है। अगर मेरी मदर, भगवान मेरी मदर तो स्टेप नहीं थी भैया, वैसे बता दूं, अगर मेरी मदर स्टेप होती तो उसका कोई हक नहीं है क्लास 1 में। क्लास 2 में कहां पर आता है बताऊंगा। आइए अब मैं क्लास 2 में जा रहा हूं।
क्लास 1 का कोई नहीं था, तो ये पहली एंट्री 100% फादर को जाएगी अगर फादर अलाइव है। सारी एसेट फादर को जाएगी अगर फादर अलाइव है। ये कब पॉसिबल है? जब उसका कोई वाइफ बच्चे नहीं थे, या वो अनमैरिड था और वो उसकी डेथ हो गई और फादर जिंदा है, मदर नहीं है। मदर होती है तो मदर को चला जाता, मदर नहीं है, फादर जिंदा है, तो 100% फादर को जाएगा। उसके बाद सपोज फादर नहीं है, अब देखिए किसको जाएगा, जरा ध्यान से सुनना, एंट्री देखना। सन्स डॉटर चिल्ड्रन, सन्स डॉटर सन, सन डॉटर डॉटर, son daughter children and his brothers and sister in equal ratio. Please note, यहां पर एक एंट्री है, उस एंट्री में 3 लोग आ रहे हैं, sons daughter children, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 5 चाइल्ड, जो भी, son daughter children and his brothers, एक ब्रदर मोर देन वन, and his sisters, इक्वल रेशियो में जाएगा। ये क्लास 2 की सेकंड एंट्री है। सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रन, थर्ड एंट्री 100% डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रन। अब फर्स्ट एंट्री का भी नहीं है, सेकंड एंट्री का भी नहीं है, थर्ड एंट्री भी नहीं है, फोर्थ एंट्री चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स। प्लीज नोट, चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग, that is son and daughter of the brothers and son and daughter of the sister, children of the siblings, उनको जाएगा। सपोज वो भी नहीं है चौथी कैटेगरी का, फादर्स पेरेंट्स, फादर के मदर या फादर, उनको जाएगा। सर वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर स्टेप मदर एंड विडोज ऑफ द ब्रदर, विडोज ऑफ द ब्रदर्स, हस्बैंड ऑफ द सिस्टर नहीं, विडोज ऑफ द ब्रदर, ये एक एंट्री में आते हैं। स्टेप मदर प्लीज, स्टेप वाइफ, उसकी जो वाइफ दूसरी आई वो यहां पर आती है, मेरे डेथ में वो स्टेप वाइफ एंड विडोज ऑफ द ब्रदर, इक्वल रेशियो, वो भी नहीं है, तो सिबलिंग्स ऑफ द फादर, सिबलिंग्स ऑफ द फादर मतलब चाचा ताए और वो बुआ और वो, उसको जाए। वो भी नहीं है तो मदर पेरेंट्स, वो भी नहीं है मदर सिबलिंग्स। इसके आगे तो मत ही जाओ तो अच्छा है यार, कोई ना कोई तो होगा ही सर। कहां मैं एग्नेट और कॉग्नेट में जाने की कोशिश करूं, कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, उनको जाएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट ईयर लीगल ईयर। ये मेल हिंदू की अगर डेथ होती है तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। अगर आपने विल नहीं लिखी है, मैंने अभी तक विल नहीं लिखी है, लेकिन मेरे 2 बेटियां हैं तो दोनों 100% बेटियों को जाएगा, 50-50 दोनों बेटियों को जाएगा। लिख देनी चाहिए, उनको तकलीफ कम होगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो थोड़ी तकलीफ कम होगी, अदरवाइज तकलीफ ज्यादा होती है। तो रवि जी को सुना रहा हूं कि याद रखें कि हमने इकट्ठे जाना है, लिख दीजिए तो अच्छा है। बार बार सुना रहा हूं, को मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए तो मैंने सक्सेशन एक्ट बता दिया आपको कि टाइम नहीं मिल रहा तो ये लॉ है, पहले सोच लेना। अब ए फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट, सुनिए, फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट, उसकी डेथ हो गई, अगर उसकी वो वाइफ, अगर वो जिंदा थी, सॉरी मैरिड थी, हर स्टेट, देखिए उसका अब एब्सोल्यूट राइट है, फीमेल हिंदू का अब एब्सोल्यूट राइट है, जो भी उसको मिला बाय वे ऑफ गिफ्ट, बाय वे ऑफ विल, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, बाय अपना जो उसने सेल्फ एक्वायर्ड किया, कुछ भी हो, इनहेरिटेंस भी तो उसकी अपना ही है। अरे मुझे भी जो इनहेरिटेंस में मिला मेरा ही है, अगर विल से नहीं आया, विल से आया है या मेरे को सक्सेशन से आया। फीमेल हिंदू की एब्सोल्यूट राइट है, पहले एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। इफ शी वाज मैरिड and she died intestate without writing a will, her state will go to her legal heir, पहली एंट्री नंबर में लीगल हेयर आते हैं, her children and her husband, her children and her husband in equal ratio। अगर उसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो 1/3 1/3 1/3। मैं हस्बैंड एक से ज्यादा नहीं गिन सकता, क्योंकि ये
ये वो वाला काम नहीं है, महाभारत वाला काम नहीं है जब एक से ज्यादा हस्बैंड हो। हस्बैंड तो एक ही है, उधर है, हालांकि लीगली अलाउड नहीं है टू हैव मोर देन वन वाइफ, लेकिन वहां लिखा क्या है, अगर मोर देन वन वाइफ है तो उस केस में दोनों को एक ही मिलेगा, लड़ते रहे आपस में अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो, लेकिन शेयर एक ही मिलेगा जो उनको मिलता है वाइफ को, एक शेयर। वो आपस में लड़ते रहे, कोई पुराने जमाने में थे मोर देन वन वाइफ तो एक ही मिलेगा। अब मैं वापस आ रहा हूं, डॉटर है, उसकी वाइफ है, उसके हस्बैंड है, उसके चिल्ड्रन है, इक्वल रेशियो में मिलेगा। लेकिन रुकिए, भगवान ना करे अगर उसके चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी, जो प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की थी, दे विल गो बैक टू द पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन और सिबलिंग्स एंड चिल्ड्रन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये लॉ ऑफ द लैंड है कि अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे और हस्बैंड को इक्वल रेशियो में मिलता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को मिलता है। लेकिन रुकिए, अगर हस्बैंड को मिलेगा, बच्चे नहीं है, तो वॉट एवर प्रॉपर्टी शी हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स विल गो बैक टू द पेरेंट्स और द लीगल हेयर ऑफ द पेरेंट्स, विल गो बैक टू द पेरेंट्स और द लीगल हेयर ऑफ द पेरेंट्स। ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये मैं आपको बता दूं। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए, भगवान ना करे, हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है और बच्चे, सॉरी अभी लेता हूं, सॉरी, प्री डिजीज चाइल्ड हो गया, सन था प्री डिजीज हो गया तो उसके चिल्ड्रन को मिलेगा। डॉटर था प्री डिजीज हो गई, उसके चिल्ड्रन को मिलेगा। ए फीमेल डाइड, शी हैड ए सन, ही प्री डिजीजेस, चिल्ड्रन विल गेट इट। साथ में विडो, इफ ही हैज शी हैड ए डॉटर, शी प्री डिजीजेस और मैरिड थी तो उसके चिल्ड्रन को मिलेगा, उसके चिल्ड्रन को, हस्बैंड को नहीं, उसके चिल्ड्रन को मिलेगा। लेकिन वो जो ग्रैंड चिल्ड्रन का नंबर आता है तभी आता है जब उसका सन प्री डिजीज हो जाए या डॉटर प्री डिजीज हो जाए। अगर वो मैरिड थे और प्री डिजीज हो जाए, मैरिड थे और प्री डिजीज, अगर वो मैरिड नहीं थे तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वैसे ही वो जो मेल वाला है। लेकिन मैरिड थे, प्री डिजीज हो गए तो चिल्ड्रन को मिलेगा, मैरिड थे तो प्री डिजीज हो गए। डॉटर का भी यही पोजीशन है, ये कैटेगरी, ये एंट्री नंबर 1 में है। लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन तभी आएंगे पिक्चर में जब उसके पेरेंट्स की, उसके मदर की या उसके फादर की डेथ हो चुकी है। इसलिए मैंने आपको बोला। अब नीचे जा रहा हूं, लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड। क्या सेकंड कैटेगरी एंट्री में कौन है? लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड। अरे लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड तो उसके अपने बच्चे भी तो हैं। नो नो नो, वो तो है, वो तो क्लास 1 में आ गए, फिर कौन आएगा? वो तो क्लास 1 में आ गए लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड। अरे उसकी मदर आ सकती है, सास, लोग दूर दूर से भागते हैं लेकिन उसकी सास आ सकती है। अरे सास ना हो तो उसके और भी आ सकते हैं जो लीगल हेयर हैं, क्लास 2 के लीगल हेयर भी आ सकते हैं। ये सेकंड कैटेगरी में। पहली में कौन है? पहली एंट्री में मैंने बोला हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, सेकंड में लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड, थर्ड में कौन आ रहा है? पेरेंट्स, मदर फादर। उसके बाद कौन आ रहा है? लीगल हेयर ऑफ द फादर। फिर उसके बाद कौन आ रहा है? मदर, लीगल हेयर ऑफ द मदर। ये फीमेल डेथ में होता है, लीगल हेयर ऑफ द। ये इंटेस्टेड डेथ है, जब आपने विल नहीं लिखी। अगर विल लिखी है तो झगड़ा ही किस बात का है? फिर तो एज पर योर विश होगा, आप विल के हिसाब से होगा। अगर जिस आइटम की विल नहीं लिखी या विल लिखना भूल गए, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास टाइम होता कहाँ है? और अब तो जाना पड़ता है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम इतने बिजी हैं, सारा दिन टीवी देखते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं ओ आज तो बहुत थक गया टीवी देख कर। सर टाइम निकालना पड़ेगा अगर विल को रजिस्टर कराना है। तो विल नहीं रजिस्टर कराई तो मैंने ये बता दिया। ये तो था सक्सेशन उसका जो मेरी प्रॉपर्टी का। अब मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ रहा हूं और उसके लिए कोई विल का चक्कर नहीं है। विल तो मैं अपने शेयर की कर सकता हूं, अपने बच्चों के शेयर की नहीं कर सकता इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसलिए जरा ध्यान से सुनना, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ध्यान से सुनना।
कईयों को तकलीफ होगी, पेट में दर्द भी हो जाएगा। ये क्या लॉ बना दिया है? ऑन और आफ्टर 9/9/2005, जरा ध्यान से सुनना, सेक्शन 6(1) करने जा रहा हूं। ऑन और आफ्टर 9/9/2005, daughter of a co-partner shall by birth have a same right as that of son. Please note the word, मैंने daughter of a father नहीं कहा है, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। daughter of a co-partner on or after 9/9/2005, मैं HUF की बात कर रहा हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात मैं कर चुका हूं सेक्शन 8 से लेकर 13 और 14 से 16। ये मैं कर रहा हूं सेक्शन 6, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू सेक्शन 8 का सेक्शन 6, हिंदू सेक्शन 8 का सेक्शन 6 रिलेटिंग टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो सपोज लोड कर लेना, डॉटर ऑफ द को पार्टनर हैज द by birth shall have the same right as that of a son, and daughter of a co-partner shall have a right in the co-partnership property, shall have a right in the same property as if she had been a son, as if she had been a son. And daughter of a co-partner, third ले रहा हूं, will have the same liability, shall be subject to the same liabilities which the son would have got it. तो मैं ये कर रहा हूं, अगर HUF है और उसका पहले हम तो कहते थे बेटे के साथ HUF होती है, जमाने चले गए। 9/9/2005 के बाद HUF डॉटर का भी उतना हक है जितना बेटे का हक है। HUF की बात कर रहा हूं, अरे वो सेल्फ अक्वायर्ड में तो बेटी का तो शुरू से ही है, 1956 से ही है। मैं तो HUF की बात कर रहा हूं। 2005 से पहले डॉटर का HUF में कोई राइट नहीं था, 2005। लेकिन रुकिए, जजमेंट भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। प्रकाश अदर्स वर्सेस फूलवती एंड अदर्स, उसने कह दिया 2 कंडीशन जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती और अदर्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। प्रकाश वर्सेस फूलवती, फूलवती एंड अदर्स। उस जजमेंट में लिखा है 9/9/2005 को अगर फादर जिंदा है और डॉटर भी जिंदा थी तो उस केस में डॉटर का पूरा हक है, चाहे वो अगर वो पहले की पैदा हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9/9/2005 में फादर अगर जिंदा है और फादर की HUF है, HUF की बात कर रहा हूं, फादर की HUF है और फादर जिंदा था 9/9/5 को और बेटी भी जिंदा थी या बेटी पैदा हुई आफ्टर 9/9/2005, उसका पूरा हक है। लेकिन 9/9/5 से पहले अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो HUF में बेटी का कोई हक नहीं है। अगर फादर की HUF थी तो बेटी का हक नहीं है, या बेटी की डेथ 9/9/2005 से पहले हो चुकी है और फादर की HUF है तो बेटी के बच्चों का कोई हक नहीं है। नो नो नो, बेटी का हक था ही नहीं 9/9/2005। अगर 9/9/5 को 2005 को the daughter was alive, father was alive and father had HUF. Daughter, whether married or unmarried, does not make a difference. 2005 के बाद बेटी पैदा हुई, does not make a difference. बेटी शादीशुदा है, बेटी अनमैरिड है, no difference. Married before 2005 है, married after 2005 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर HUF 9/9/5 को थी फादर की और उसके बाद बेटी पैदा हुई या बेटी पहले की है, शादी और नॉट शादी, उसका पूरा हक है इन दी HUF और फादर, लाइक द सन, लाइक हर ब्रदर, इक्वल राइट लाइक हर ब्रदर। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरी अगर HUF है तो मेरी HUF, एक होता है मेंबर ऑफ द HUF, एक होता है को पार्सर ऑफ द HUF। देखिए, को पार्सर होता है जो पार्टीशन करा सकता है HUF का, जिसके पास राइट है पार्टीशन कराने का, वो शेयर ले सकता है, और मेंबर का शेयर नहीं होता। शी गेट्स द बेनिफिट ऑफ द HUF, मेंबर बनके उसको उसकी प्रिविलेजेस मिलती हैं, लेकिन उसका शेयर नहीं होता। हाँ, एक का है, वो वाइफ का, जिसकी HUF है, जो जिसने बनाई HUF, उसकी वाइफ का हक होता है। वो क्या होता है कि वो हालांकि मेंबर है, वाइफ इज नेवर ए को पार्टनर, शी इज ए मेंबर।
But whenever there is a partition, the wife of the, I will not use the word karta, the wife of the person who made that HUF. मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसने HUF अपनी जिसकी थी उसकी वाइफ का हक है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे फादर की HUF हो तो मेरी वाइफ का हक है। जी नहीं, मैं कर्ता बन गया फादर की HUF का, सपोज फादर की डेथ के बाद, मेरी वाइफ का हक नहीं। नो 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 नो, मेरी मदर का हक था, मदर का, जिसकी HUF बनी हुई है। क्योंकि मेरे फादर की HUF भी हो सकती है, मेरी अपनी HUF भी हो सकती है, मेरे बच्चे की HUF भी हो सकती है। तो पहले ये बता दूं, वाइफ ऑफ कर्ता वर्ड यूज करते हैं लोग, लेकिन वाइफ ऑफ कर्ता नहीं है, वाइफ ऑफ दैट पर्सन हु मेड दैट HUF, जिसकी HUF है उसकी वाइफ, या मेरी मदर, मेरी मदर, मदर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ दैट जिसने HUF बनाई, उसका है, बाद में बताऊंगा। सो को पार्टनर कौन कौन होते हैं? मेरी तरफ लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में देखना, मेरी फादर की HUF है। आई वॉज द मेंबर ऑफ माई फादर बाई बर्थ, मैं बाई बर्थ को पार्टनर बन जाऊं। मेरे पहले मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ था, उसके साथ उन्होंने HUF बनाई होगी। मेरा दूसरा भाई पैदा हुआ, सेकंड वाला, उसकी भी HUF वो उसी में होगा, और मैं थर्ड पैदा हुआ। बाई बर्थ आई हैव ए राइट इन दैट HUF, कोई मुझे निकाल नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि फादर ने मेरे ब्रदर के साथ एक HUF बना ली, फादर ने दूसरे ब्रदर का बना ली, तीसरे के साथ बना ली, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। फादर child by birth will become the member. The child will have the same right, उसका equal right होगा by birth. प्लीज देखना, चाइल्ड में दोनों आ गए, 9/9/2005 के बाद दोनों आ गए। लेफ्ट साइड में सन रख रहा हूं, राइट साइड में डॉटर रख रहा हूं। राइट साइड को बाद में बात करूंगा, मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। फादर की HUF है, उसका बेटा बाय बर्थ वो को पार्टनर है। बेटे का बेटा और बेटी की बेटी, 9/9/2005 के बाद बेटी भी आ गई। बेटे का बेटा एंड बेटे का बेटी 9/9/2005 बाय बर्थ को पार्टनर माने जाए। दादा की बाय बर्थ को पार्टनर माने। बेटे का नंबर कब आया? 9/9/2005 में। 9/9/2005 से बेटे का बेटा ही होता था, बेटे का क्योंकि लिखा है डॉटर ऑफ ए को पार्टनर, क्योंकि बेटा भी तो को पार्टनर था। तो डॉटर ऑफ ए को पार्टनर बाय बर्थ विल हैव द सेम राइट एज दैट ऑफ द सन, एंड शी विल हैव द सेम राइट एज इफ ही वाज अ सन। तो मैंने बोला मेरा बेटा, बहन को मैंने अलग कर दिया, उसको बेटी को अलग कर दिया। मेरे फादर की HUF, उनका बेटा, बेटे का बेटा प्लस उसकी बेटी, बेटे की बेटी, 9/9/2005 के बाद, फिर उस बेटे का फिर बेटा और उसकी बेटी, 4 जनरेशन तक वो को पार्टनर माने जाते। फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन के साथ मैंने उसकी सिस्टर भी कर दी, ग्रेट ग्रैंडसन के साथ उसकी सिस्टर भी कर दी, क्योंकि फादर ऑफ ए को वो है डॉटर ऑफ ए को पार्टनर। मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरे फादर की HUF में कौन कौन बाय बर्थ आएंगे? बाय बर्थ मेरे फादर ने बनाई, फादर, सन, हम लोग सन हैं, सन, उसके बाद ग्रैंडसन, और ग्रैंडसन के साथ 9/9/2005 उसकी बहन भी, ग्रेट ग्रैंडसन और उसकी बहन भी। ये 4 जनरेशन को पार्टनर है, ये बाय बर्थ को पार्टनर है। इनका राइट बाय बर्थ आ जाता है, कोई इनको निकाल नहीं सकता। बाय बर्थ है ये बाय बर्थ है। एंड दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन, दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन। कभी भी खड़े होकर कह सकते हैं पार्टीशन चाहिए। लेकिन रुकिए, जो 5वीं जनरेशन है वो मेंबर तो होती है लेकिन को पार्टनर नहीं। फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, मैंने सिस्टर साथ में ले ली। अब नीचे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, नो नो, वो मेंबर है, वो पार्टीशन नहीं करा सकता। और प्लीज, अगर नंबर 2 की डेथ हो जाए, नंबर 1 अभी जिंदा है, तो नंबर 5 नंबर 4 नहीं बनेगा। नंबर 3 की डेथ हो जाए, नंबर 1 जिंदा है तो नहीं बनेगा। नंबर 4 की डेथ हो जाए, नंबर 5 का 4 नंबर नहीं आएगा। जब तक नंबर 1 नहीं टपकेगा, नंबर 5 नंबर 4 नहीं बनेगा। एक चीज और बता दूं, HUF कभी मरती नहीं है। HUF नेवर डाइज, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है।
Karta dies, if Karta dies, long live the Karta. Crown dies, long live the crown. If the king dies, long live the king. तो long live क्या, कोई और king बन जाता है. If the Karta, जिसकी अपनी HUF थी, मैं उसको ले रहा हूं, जिसने बनाई, उसकी डेथ हो जाए, लॉन्ग लिव द कर्ता. कौन बनेगा कर्ता? एल्डेस्ट चाइल्ड. आपके मुंह से निकला होगा सन. अब जवाब मत देना, बगैर की बातें मत करना. 9/9/2005 के बाद एल्डेस्ट चाइल्ड आ गया. एल्डेस्ट चाइल्ड, ये जजमेंट आ चुकी है. एल्डेस्ट दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता. और अब ध्यान से सुनना, ये क्या जजमेंट है. एक डीआर गुप्ता की HUF थी. डीआर गुप्ता की HUF थी. डीआर गुप्ता हैड 5 sons. डीआर गुप्ता की डेथ हो गई. द एल्डेस्ट सन KM गुप्ता, एल्डेस्ट सन था उस वक्त, डॉटर नहीं थी उसकी. एल्डेस्ट सन बिकेम द कर्ता ऑफ दैट HUF ऑफ हिज फादर. अब ग्रेजुअली चारों सन की, दूसरे सन की भी डेथ हो गई, जो 4 भाई थे. और 5वां डीआर KM गुप्ता की भी डेथ. KM गुप्ता की भी डेथ हो गई. KM गुप्ता के 4 ब्रदर थे, उनकी भी डेथ हो गई. लेकिन ग्रैंड फादर की डेथ थी उनके, डीआर गुप्ता की. अब KM गुप्ता की बेटी थी सुजाता शर्मा. उधर से दूसरे भाई का बेटा था. तो अब सवाल आया, कर्ता कौन बनेगा. अब बेटी बड़ी थी और जो कजन था, जो उसका भाई का बेटा था, वो छोटा था. लॉ ने कहा डॉटर ऑफ ए को-पार्टनर विल बी ए कर्ता ऑफ दैट HUF हु इज द एल्डेस्ट चाइल्ड. वो एल्डेस्ट चाइल्ड को बनाया सुजाता शर्मा. चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये लॉ है. सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता. अरे मैं तो डॉटर की बात कर रहा हूं. मेरी बेटी तो बन ही सकती है. मैं तो बेटे की बेटी की बात कर रहा हूं यार. बेटे की बेटी को पार्सनर बन गई, वो कर्ता बन गई. दूसरे भाई की बेटी नहीं बना, बेटा नहीं बना. दूसरे भाई का बेटा छोटा था और भाई की और ये जो बेटा था उसकी छोटी, तो को पार्सनर बन सकती है. मैं तो उसकी बात कर रहा हूं. मेरी बेटी तो को पार्सनर बन ही सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एल्डेस्ट चाइल्ड को पार्सनर होता है. मैं आपको बता दूं, मेरी तो दोनों बेटियां ही हैं. तो एल्डेस्ट चाइल्ड मेरी बेटी को पार्सनर होगी, मेरी HUF की कंटिन्यू करेगी. मैं आपको क्या बताऊं, पुराना सीक्रेट खोल रहा हूं. 2005 से पहले, बड़ी पुरानी बात है, मेरे फादर की डेथ हुई और 78 से पहले आप पार्शियल पार्टीशन भी कर सकते थे. और 78 से पहले तो आप स्मॉलर HUF भी बना सकते थे इनकम टैक्स में. तो हमने अपनी अपनी HUF बना ली, भाइयों ने, ब्रदर ने भी, मैंने भी, अपने भी HUF बन गई. अब HUF बन गई, मेरी तो बेटी थी जब वो HUF बनी. अब जब HUF बनी, मेरी बेटी थी. 78 से पहले की बात, मेरी बेटी थी. अब मुझे क्या पता था, मुझे लॉ आता नहीं था तब, किसी को भी नहीं आता वैसे तो HUF. मैंने HUF बना ली और असेसमेंट कराता रहा और करते रहा. होती रही असेसमेंट, कोई किसी ने कुछ कहा ही नहीं. बेटी के साथ HUF चलती रही. ये 2005 जब आया तब मुझे पता लगा कि डॉटर तो मैं थी नहीं, HUF होती नहीं है, वो तो होती नहीं है मेंबर उसकी. अब मैं क्या करूं. मैं फिर भी चुप रहा, 6-7 साल चुप रहा. और उसके बाद मैंने अपनी असेसमेंट कराता रहा. और अब मैंने लोगों को शोर मचा बचा के कहा है कि डॉटर मेरी HUF है, क्योंकि मेरी HUF में डॉटर मेरी को पार्टनर हो सकती है. सो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन दैट, क्योंकि डॉटर हैज ए सेम राइट एज दैट ऑफ सन इन माय HUF. लेकिन 9/9/2005 के बाद, अरे भैया, डॉटर मेरी HUF की कर्ता बन सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की HUF की कर्ता नहीं बनती. वो नहीं बन सकती, वहां मेंबर है. शी कांट बी ए कर्ता ऑफ हस्बैंड HUF, बट शी विल बी ए कर्ता माय HUF. और एक और बात सुनिए, मैंने राइट साइड बताया था डॉटर HUF की मेंबर, बोला था ना डॉटर इज HUF. लेकिन डॉटर के बच्चे नाना की HUF में नहीं होते, क्योंकि डॉटर के चिल्ड्रन विल बिकम को पार्टनर ऑफ देयर फादर्स HUF. उसके फादर की तो HUF होगी ना, वहां की HUF के मेंबर होंगे. जो मेरी डॉटर के बच्चे हैं, मेरी डॉटर के दो डॉटर है, दोनों के 2 बच्चे हैं, वो अपने फादर की HUF के मेंबर होंगे, मेरी HUF के नहीं होंगे. दे कांट आस्क फॉर पार्टीशन. मेरी HUF का पार्टीशन मेरे डॉटर के बच्चे नहीं करा सकते. लेकिन जब भी पार्टीशन होगा, अगर डॉटर अलाइव नहीं है किसी की, तो उसके बच्चों को मिलेगा. लेकिन दे कांट आस्क फॉर पार्टीशन.
नाना की प्रॉपर्टी एचयूएफ का पार्टीशन बेटी के बच्चे नहीं करा सकते, क्योंकि वो बाई बर्थ नहीं बनते। पोता करा सकता है, पोते का बेटा करा सकता है, लेकिन पोते की बहन करा सकती है, लेकिन डॉटर के बच्चे नहीं करा सकते। हाँ, जब भी मेरा पार्टीशन होगा तो डॉटर के बच्चों को शेयर मिल जाएगा। अगर डॉटर अलाइव नहीं है तो डॉटर के बच्चों को शेयर मिलेगा, लेकिन वो पार्टीशन नहीं करा सकती। ये आपको बता दूं, वाइफ भी पार्टीशन नहीं करा सकती, वाइफ पार्टीशन नहीं करा सकती, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा वाइफ को शेयर मिलेगा। मुझसे पूछते एचयूएफ बनती कैसे है? अब जरा ध्यान से सुनना। एचयूएफ इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नॉट एक्ट ऑफ पार्टी। ये एक्ट ऑफ पार्टी से नहीं होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। पार्टनरशिप तो एक्ट ऑफ पार्टी से बनती है, दो मिल जाए तो पार्टनरशिप हो गई, कंपनी बन गई, शेयर होल्डर हो गए। एचयूएफ ऐसे नहीं बनती। एचयूएफ, अब जरा हिंदू लॉ में सुनना, इनकम टैक्स में अलग बोलूंगा। द डे यू गेट मैरिड अंडर हिंदू लॉ, विच इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ, इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स का तो होगा, मुझे क्या लेना देना यार, होगी तुम्हारी एचयूएफ। इनकम टैक्स तब होगा जब इनकम टैक्स देना होगा। यहाँ कोई कोपरा, वो कहता है एचयूएफ जिस दिन आपकी शादी हो एचयूएफ हो, लेकिन फिर भी एचयूएफ क्या करेगी जब तक उसका कॉर्पस नहीं होगा। अरे कॉर्पस भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए। खाली एचयूएफ बन गए मियां बीबी की, खुश हो लो। अरे खुश क्या होना है, उसमें क्या है? जब तक पैसा नहीं है, उसमें कॉर्पस नहीं है, कैपिटल फंड नहीं है, तो एचयूएफ क्या करेगी? ये कॉर्पस कहां से आएगा? मैं बताता हूं। पर इनकम टैक्स में एक और प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम इस तरह एचयूएफ नहीं। देखिए यो, पहले तो दो भाइयों में एचयूएफ नहीं हो सकती ना, दो भाइयों में नहीं हो सकती। हाँ, ऑलरेडी फादर की एचयूएफ थी, दो भाई उस एचयूएफ में कंटिन्यू करते हैं, तीन है तो तीनों कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपनी एचयूएफ नहीं बना सकते दो भाई मिलकर, नहीं बना। हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स में नहीं रिकॉग्नाइज करते। इनकम टैक्स कहते हैं ऐसे बनती है एचयूएफ। मेरा इशारा देखना, लीनियर डिसेंडेंट होना जरूरी है, कम से कम दो को पार्टनर होने जरूरी है। वाइफ को पार्टनर नहीं होती तो फायदा क्या हुआ? दो को पार्टनर नहीं है तो एचयूएफ किस बात की हुई? वाइफ तो मेंबर है, को पार्टनर नहीं है। इनकम टैक्स कहता है दो एक लीनियर डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब बेटा या 2005 के बाद बेटी। मेरी तो पहले से बनी थी, वो तो छोड़ दो ना। 2005 के बाद बेटी लीनियर डिसेंडेंट है, तब आपकी एचयूएफ। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हो गया, आप एचयूएफ को क्रिएट कर लीजिए इनकम टैक्स की। कहते क्रिएट क्या, ऑलरेडी है। मेरे से लैंग्वेज गलत मत सुनना, ऑलरेडी है बच्चा पैदा होते ही। लेकिन रुकिए, कॉर्पस कहां से लाएंगे? मैंने अभी बोला, अगर मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी तो इंडिविजुअल में जाएगी, वो तो इंडिविजुअल शेयर जाएगा, नॉट एज एचयूएफ। वो जमाना चला गया है, नॉट एज 56 से पहले वो एचयूएफ में जाती थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती थी। 56 के बाद ऐसा नहीं है। सो व्हाट विल हैपन इफ ये क्या होगा अगर एचयूएफ नहीं बनेगी? कहां से बनेगी? दो ही तरीके हैं एचयूएफ बनाने के। एक होता है बाय विल, एनीबॉडी कैन मेक ए विल गिविंग द प्रॉपर्टी टू द एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। पहले बता दूं, एचयूएफ हमेशा मेल की होती है, फीमेल की एचयूएफ नहीं होती। एचयूएफ हमेशा मेल की होती है, मेल के साथ लीनियर डिसेंडेंट। लेकिन रुकिए, विल कौन विल करे? एनीबॉडी कैन विल, एनीबॉडी कैन विल। फादर कैन मेक ए विल दैट आफ्टर हिज डेथ such and such property will go to the HUF of such and such son। अलग अलग भी बता सकता है, तीनों सन की अलग अलग HUF क्रिएट कर सकता है बाय विल। विल से, विल तो आप भी कर सकते हैं, रवि जी कर सकते हैं मेरे लिए विल, कि मेरे मरने के बाद कोई भी, कि ये इसकी HUF को जाए। HUF तो कोई भी विल में बना सकता है, कोई भी है। मैं भी कर सकता हूँ विल, कि मैं कहता हूँ शिवम, ये इनका बेटा है अरुण आहूजा का, मैं कहूंगा दिस विल गो टू आफ्टर माय डेथ, दिस विल गो टू एचयूएफ ऑफ शिवम एंड शिवम। अरे शिवम तो अभी शादीशुदा ही नहीं है, लेकिन जब शादी होगा तो उसमें एचयूएफ में बन जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी तो वो इंडिविजुअल असेसमेंट में रहे, लेकिन शिवम के नाम भी मैं विल तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में सेक्शन 56(2)(10) में विल इज नॉट ए कोई गिफ्ट नहीं मानी जाती। विल में कोई टैक्स नहीं लगता 56(2)(10) में, और कैपिटल गेन में भी विल इज नॉट ए ट्रांसफर। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, विल से एचयूएफ बना लीजिए। विल कौन करे? मदर कर दे, फादर कर दे, भाई कर दे, कोई कर दे विल। और विल कर दे कि मेरे डेथ के, विल तो एग्जीक्यूट तो डेथ के बाद ही होगी, पहले डेथ से पहले थोड़ी विल एग्जीक्यूट हो। डेथ के बाद उसमें रिसाइटल होना चाहिए दैट आफ्टर माय डेथ
such and such property or such and such amount will go to the HUF of such and such person. तो आपको कॉर्पस मिल गया। दूसरा तरीका मैं बताया करता हूं, एक गिफ्ट ले लीजिए 2,51,000 रुपए की किसी से भी। देखिए दूसरा तरीका है मेंबर से गिफ्ट ले लीजिए, लेकिन वो पहले बताते मेंबर से गिफ्ट लेने का फायदा नहीं है। हालांकि मेंबर से गिफ्ट लो तो वो टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन वो क्लबिंग हो जाती है। उस गिफ्ट से जो इनकम आती है वो क्लब हो जाती है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि मैं भी अपनी HUF को गिफ्ट दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं। इफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज गिवन टू द HUF, टू माय HUF, or it is converted into the HUF or treated as a hodgepodge of the HUF, then the income from that asset which I have transferred to the HUF without consideration shall be deemed to be the income of the transferor. वो ट्रांसफर की इनकम मानी जाती है, लेकिन उसमें भी कई बार फायदा होता है। सपोज कोई मैं अपने HUF को गिफ्ट दे देता हूं 1 करोड़ रुपए दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए मैं लगा देता हूं टैक्स फ्री बॉन्ड में, और वो इसकी इनकम आती है लेट्स से 5.5%। वो 5.5 लाख रुपए इनकम आएगी HUF को, लेकिन क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है तो क्लबिंग में भी तो एग्जेम्प्ट होगी, तो मेरे में क्लब ही नहीं होगी। लेकिन जो 5.5 लाख रुपया HUF के पास है, उससे जो फर्दर इनकम आएगी वो HUF की मानी जाएगी, वो हमारी नहीं मानी जाएगी। HUF की इनकम इज टैक्सेबल, इनकम ऑन इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। जो 5.5 लाख आया वो मेरी इनकम में जुड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एग्जेम्प्ट था तो मेरी इनकम में भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन जो 5.5 लाख से आगे इनकम कमाई या उससे आगे बिजनेस किया, उस केस में वो इनकम क्लब नहीं होगी, वो HUF की मानी जाएगी। तीसरा तरीका है, अरुण जी से मुझसे गिफ्ट ले लेता हूं 2,51,000 रुपए का अपनी HUF के नाम पर, क्योंकि गिफ्ट लिया है तो 56(2)(10) में कहता है ये तो टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कर लो टैक्स। 2.5 लाख तो माफ है, 2.5 लाख माफ करोगे पहले साल, 1,000 पर 52 रुपए टैक्स बनेंगे, 5% 50 रुपीज, 4% उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 52 रुपए, 52 रुपए टैक्स दीजिए, रिटर्न भर दीजिए, डिपार्टमेंट भी खुश और आप भी खुश। आपकी HUF तैयार हो गई 2,51,000 से 52 रुपए में। लेकिन प्लीज गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। हमारे यहाँ गिफ्ट दी नहीं जाती है, ली जाती है, ये दिक्कत है। कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता, भाई भाई को नहीं देता, भाई बहन को नहीं देता, लेकिन हाँ यार तो रोज गिफ्ट ली जाती, यहाँ तो लिए ही जाती है। रवि जी गिफ्ट लेते रहते हैं, पता नहीं लेते नहीं लेते मुझे नहीं पता, लेकिन गिफ्ट तो ली जाती। हमारी कंट्री में गिफ्ट ली जाती, बट जेन्युइन होनी चाहिए सर, जेन्युइन। अगर जिल जेन्युइन नहीं हुई तो 115 BBE में आपको 78% टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, 78%, और एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। बता दूं, गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। आप कहेंगे जेन्युइन क्या है? अरे उसका पेड इनकम टैक्स पेड से होनी चाहिए, जेन्युइन सोर्स से होनी चाहिए, वो प्रूफ देगा बैंक। और गिफ्ट हमेशा बाई चेक लेना तो अच्छा है। वैसे तो आप 2 लाख तक गिफ्ट कैश में भी ले सकते हैं पर डे, क्योंकि लॉ कहता है 269 ST में 2 से ज्यादा आप एक दिन में नहीं रिसीव कर सकते कैश में। लेकिन अच्छा हमेशा अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से गिफ्ट ले सकते हैं HUF के नाम पर। लिखवाना पड़ेगा, रिसाइटल शुड बी देयर इन द गिफ्ट दैट आई such and such, son of such and such, age such and such, resident of such and such place, hereby give a gift of rupees इतना to HUF of such and such person। रिसाइटल HUF का होना है, नाम का नहीं, HUF of such and such person। उसमें रिसाइटल होना चाहिए कि मैं उसके HUF के लिए दे रहा हूं, और गिफ्ट आप दे सकते हैं और गिफ्ट देकर उसकी HUF क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो 2.5 लाख से कम भी होता है, लेकिन इनकम टैक्स को क्या पता लगेगा। इसलिए बेटर ये है 2.5 लाख से ऊपर लीजिए। अरे आप तो 4 लाख भी ले लीजिए, ATC का 1.5 लाख का बेनिफिट ले लीजिए, क्या मना करता है? आप तो वो भी कर सकते हैं, आप हर साल भी ले सकते हैं। 50,000 से ऊपर गिफ्ट लेंगे तो आपको पता है वो टैक्सेबल होती है, ये सोच के चल। आप गिफ्ट से भी HUF बना सकते हैं, तो HUF बनाइए। कोई कहता है जी HUF का फायदा क्या है? सर बहुत फायदा है, आप बना रहे हैं, बनाई नहीं है, ऑटोमेटिक बनती है, सिर्फ पैसा ले रहे हैं। क्या फायदा है? अगर आप देखिए एक सेपरेट SSC है, तो जो फर्स्ट 2,50,000 पे अगर आप अपनी इनकम में जोड़ते, हो सकता है 30% टैक्स लगता,
लेकिन एचयूएफ में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2,50,000 एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगा तो 75,000 बच गया। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% टैक्स लगता है एचयूएफ को। तो अगर मेरी इनकम में आता तो हो सकता है 30% लगता, तो 25% बचाया, 62,500 हो गया। अगर मैं पुराने लॉ में जाऊं, अब तो नई स्कीम भी आ गई ना, न्यू रिजीम, पुराने लॉ में जाऊं तो 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स है। अरे 20 है तो भी 10% बचाया, और 10% बच गया तो 5 लाख पे 50,000 बच गया। तो मेरा 1,87,500 टैक्स बच जाता है अगर 10 लाख की इनकम अगर एचयूएफ में। 1,87,500 नहीं है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स भी बचता है भैया, वो भी तो गिन लो। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स ये बचता है अगर मैं ओल्ड रिजीम में हूं। अगर न्यू रिजीम में हूं, 15 लाख तक अगर एचयूएफ की इनकम है 15 लाख तक, तो 2,62,500 टैक्स बचता है। 2,62,500 प्लस 4% ये टैक्स बनता है अगर एचयूएफ में इनकम है। लेकिन ये मत पूछना इनकम कमाई कैसे जाए, क्योंकि इनकम कमाने के लिए तो आपके पास कॉर्पस होना चाहिए या आप बिजनेस कर सकते हैं। तो लोगों को बोगस इनकम दिखाने की बड़ी आदत है। मैं वो कहता हूं ऐसा मत कर, आजकल जमाना नहीं। आप एचयूएफ में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन फंड किसके होने चाहिए? एचयूएफ के फंड होने चाहिए। फंड एचयूएफ के होने चाहिए, आपके नहीं, एचयूएफ के फंड। बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन नहीं कर सकते। प्रोफेशन एचयूएफ में नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशन तो इंडिविजुअल करता है या पार्टनर्स कर सकते हैं, एक फर्म ऑफ पार्टनर। प्रोफेशन नहीं कर सकते। आप बिजनेस कर सकते हैं, करिए बिजनेस एचयूएफ में, नोबडी स्टॉप्स यू। बट एक बार प्रॉब्लम आती है, शेयर का बिजनेस करते हैं तो वो जरा स्पेकुलेटिव माना, स्पेकुलेटिव एज पर नहीं इनकम टैक्स वैसे माना जाता है कि कम बढ़ती हो जाएगा, तो माइनर कैन ऑब्जेक्ट कि आपने मेरा डेट्रीमेंटल कर दिया, अगर माइनर उसमें है। लेकिन मैं ये बता दूं, एचयूएफ 31 मार्च वाली कमीशन नहीं ले सकता। बड़े हल्के से बोला है, 31 मार्च वाली कमीशन नहीं ले सकता। कमीशन की जो एंट्रियां लेते हैं ये फंस जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, एचयूएफ कमीशन नहीं ले सकता। एचयूएफ 44 एडी का बिजनेस कर सकता है, कोई मना नहीं है। फंड्स एचयूएफ के लगाइए, बाकी लोन ले लीजिए, लेकिन एचयूएफ को बैंक लोन नहीं देता। नो नो नो, कोई बैंक लोन नहीं देगा एचयूएफ को, बता। पर एचयूएफ अपने बंड ले सकता है या किसी से लोन ले सकता है और बिजनेस कर सकता है। करिए बिजनेस एचयूएफ में, करता देखेगा उस बिजनेस को। अरे बिजनेस करेंगे तो करता उसकी सैलरी भी ले सकता है एक रीजनेबल अमाउंट का उस बिजनेस से। अगर बिजनेस होगा तो सैलरी करता ले सकता है, अगर बिजनेस नहीं है एचयूएफ का तो सैलरी करता नहीं ले सकता। करता क्या कोई भी मेंबर ले सकता है, लेकिन अगर बिजनेस है तो एचयूएफ बिजनेस कर सकता है। 44 एडी का बिजनेस करिए, 2 करोड़ तक सेल हो, 8% दिखाइए, और वो का तो 8% 16 लाख तक भी आपकी इनकम हो सकती है। लेकिन फंड्स जेन्युइन होने चाहिए। नंबर 2, बिजनेस भी जेन्युइन होना चाहिए। हल्के से कहा, बिजनेस भी जेन्युइन, क्योंकि यहाँ तो लोग पता नहीं क्या करते हैं, कुछ भी बेचा नहीं, सेल भी दिखा देते हैं और फिर ये 44 एडी में चलेगा। ध्यान रखना, जीएसटी भी है कई चीजों में, क्योंकि पहले तो कपड़ा यहाँ हमारी कंट्री में इतना कपड़ा बिकता था जितना कि प्रोडक्शन ही नहीं होती। और मैंने कहा कैसे करते हो सर? कपड़ा बेचा है, कोई टैक्स तो है ही नहीं, वैट तो है ही नहीं, कपड़ा बेचकर हमने खरीद 44 एडी में इनकम दिखा दी। लेकिन अब कपड़ा भी नहीं बिक सकता, कपड़े पे भी जीएसटी है। ध्यान रखना, जीएसटी तब 20 लाख तक ही है एग्जेम्पशन, 20 के ऊपर तो टैक्स है। तो आपको ध्यान रखना है, गलत काम करते हुए 10 बार सोचना है, गलत काम नहीं करना चाहिए। और मैं तो छोड़ दिया है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा चुकी है, ये पहले बता दूं। मैं तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चला गया हूं, और आपने 99 खाए हैं तो एक और खा लेना, इसके ऊपर मत खाना, बिल्कुल मत खाना। जमाना बदल गया है, एक एक इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, सबका 360 डिग्री प्रोफाइल बन चुका है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि अब आप टैक्स दो, अपनी जान छुड़ाओ, रिस्क मत लो। थोड़ा बहुत प्लानिंग करनी है, वो चीज अलग है, आटे में नमक चलता है, सिर्फ नमक नमक नहीं चलेगा। ये जो आप पहले करवाते रहे या करते रहे, जमाने बदल गए हैं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप एचयूएफ में, ये लीगल है, कोई गिफ्ट लेना कोई बुरी बात, गलत थोड़ी है, लेकिन क्रॉस
गिफ्ट नहीं होनी चाहिए कि मैं उसकी एचयूएफ होगी तो पकड़े जाएंगे, वो पकड़ेंगे तो कहेंगे तब टैक्स प्लानिंग, वो नहीं होनी चाहिए। तरीके हैं वो मैं बाद में वेबिनार में क्या बताऊं, लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी। गिफ्ट लेकर आप एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एचयूएफ हमेशा मेल मेंबर की होती है, फीमेल की नहीं होती। लेकिन फीमेल उसमें वाइफ ऑटोमेटिक मेंबर है, डॉटर बाय बर्थ, सेम राइट एज दैट सन, ग्रैंडसन उसकी बहन वो ही। अब मैं जब बता रहा हूं, जब भी एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो डॉटर को उतना ही हक मिलेगा जितना बेटे को मिलता है। तो लोगों ने बड़ा शोर बड़े लेक्चर दिए, 20 तो अभी दिए, पहले भी बहुत देता रहा। तो किसी ने कहा सर इसका मतलब है मेरी बहन शेयर लेके जाएगी जब भी मेरे फादर की एचयूएफ की पार्टीशन होगी, फादर की एचयूएफ की, क्योंकि बहन अभी तुम्हें शेयर मिलना। मैंने कहा बिल्कुल लेके जाएगी, लेकिन रोता क्यों है, तेरी बीवी लेके भी तो आएगी, तेरी बीवी लेके भी तो आएगी। कहता ठीक है सर, लेकिन रुकिए सर, बीवी मेरी एक है, बहनें मेरी 2 हैं, उसका क्या करूं? उसके मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, बहनों को दोनों को शेयर मिलेगा। जब भी फादर की एचयूएफ की बात कर रहा हूं, फादर की एचयूएफ पे फादर की जब भी पार्टीशन हुआ उस एचयूएफ का बेटे को भी उतना हक है जितना बेटियों को है, चाहे वो बेटी शादीशुदा है चाहे बेटी अनमैरिड है, सेम राइट मैंने आपको बता दिया। तो बेटी को उतना ही शेयर मिलेगा। लेकिन हमारी बेटियां अच्छी होती हैं, रेलिक्विश कर देती, भाई को दे देती, लेकिन हस्बैंड नहीं मांगता है, ये भी ध्यान रखना। बेटी देने को तो तैयार है, शी इज रेडी टू गिव, लेकिन कईयों के हस्बैंड कहते कैसे कैसे दे देगी तू, तेरा तो राइट है। तो बेचारी क्या करे। लेकिन हमारी कल्चर है अभी, बहनें अभी भी अच्छी हैं, बहनें हक लेना नहीं चाहती भाइयों का, ये मैंने बहुत देखा है। हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मेरी तो बेटियां हैं तो मैं क्या कहूं, उनके तो बहनें, वो तो भाई है ही नहीं है, लेकिन बहनें करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जमाना बदल गया है, बेटियों का भी वही हक हो गया है जो बेटों को है। तो आजकल तो लोग बेटों को भी उतना ही देते हैं जितना बेटियों को दे। वो जमाना चले गए, आप पुरानी चीजें छोड़ दो, बेटा 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 बेटा। हम भी यही करा करते थे, मेरी माँ भी यही करा करती थी, मेरे फादर भी यही करा करते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी यही करते थे, बेटा ही होना चाहिए। लेकिन मेरी बेटियां थी, तब भी मेरी माँ ने कहा था एक बेटा जरूर होना चाहिए। मैंने कहा मतलब नहीं है, अब वो बेटा नहीं है मेरा, लेकिन मेरे भाई कहते हैं तू ज्यादा सुखी है। मैंने कुछ नहीं बोला मेरे भाई कहते हैं तू ज्यादा सुखी है, क्योंकि डॉटर पूछती है, शादी के बाद भी पूछती है। मैं ये नहीं कह रहा बेटे नहीं पूछते, उस दिन बुरा मान जाना। शिवम को बोला, मैं तो जानकर भड़काता हूं बच्चों को, ताकि उनको याद रहे माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप का ध्यान रखना है। मैं मजाक में कहता हूं, ए सन इज ए सन टिल ही गेट्स ए वाइफ, ए डॉटर रिमेन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन ऐसी बेटियां भी देखी हैं जो बाप को तंग कर मारती हैं शादी के बाद। ऐसे बेटे भी देखे हैं जो हीरे हैं, हीरे, उन्होंने मोती दान किए अपने, जो बच्चे इतने हीरे, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं। अरे ठीक है, उनको प्रॉब्लम आती है, बीवी की एक तरफ माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, लेकिन यही तो अकलमंदी है कि कैसे बैलेंस रखना है। लेकिन बेटे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, सबके नहीं है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी हैं जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए, ना करे। लेकिन फिर मैं हाथ जोड़ता हूं, थोड़ी सी गलती हमारी भी है अगर बेटे अगर कपूत हो गए, क्योंकि हमने ही तो पाला है उनको। अगर हमने उनको शिक्षा अच्छी दी होती तो वो कपूत क्यों होते। कई बार सोसाइटी का असर हो जाता है, मानता हूं, जमाने का असर है, आजकल पता नहीं है, और कई बार बीवी की मजबूरी हो जाती है, वो बातें अलग है। लेकिन आजकल तो हस्बैंड ज्यादा तेज है बीवियों के, वो जमाने बदल गए हैं, ये भी बता दूं। आप कहेंगे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, नहीं नहीं सर, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरा सन-इन-लॉ बहुत अच्छा है, एक पैसा भी नहीं लेता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, जमाने में वक्त में बहुत बदलाव आ गया है। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, रियल स्टेट, ये जो दिमाग में पैसा दिमाग में आ गया है, ये जिंदगी में बहुत तंग करता है। अरे माँ बाप की सेवा करो सर। मैंने उस दिन भी कहा था, हम तो फंस गए, हम तो माँ बाप से भी डरते थे और अपने बच्चों से भी डरते। ये क्या जमाना आ गया सर, क्योंकि बच्चे ही एक दो हैं, डरना ही पड़ता है। वो भी ब्लैकमेल करते हैं, एक हमें जरूर एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको पता है कैसे करना है। बचपन में भी करा करते थे, जब उनको नहीं दिलवाओ तो लेट जाते थे जमीन पर, हम भी करते थे शायद, हमें क्या पता, हम भी करते होंगे कि ये दिल के दो, ये लेके दो, ये लेके दो। पर आजकल तो माँ बाप बगैर के ही दिलवा देते हैं, वो तो बगैर के ही हर चीज उनको फैसिलिटी है।
जबकि इनको इतनी फैसिलिटी देनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने दी है। हमने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जो हमें नहीं मिला अपनी लाइफ टाइम में, हम अपने बच्चों को पूरा ही देना चाहते हैं। सर, उनको पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, बच्चों को पैसों की वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, देना तो उन्हीं की है, कमाता तो उन्हीं के लिए हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं या आप जिंदा हैं, अपने लिए सफिशिएंट रख लेना। बच्चों को गिफ्ट दो, मना नहीं करता, हमारा फर्ज है उनको सेट करना, हमारा मर्ज है, लेकिन बच्चों को गिफ्ट दो, लेकिन अपने लिए इतना पैसा रख लो ताकि यूं करना ना पड़े, मांगना ना पड़े। जिंदगी में ये जो कर्म है ना, मांगना, ये आदमी को खत्म कर देता है। तो जमाना बदल गया, बच्चे अच्छे हो सकते हैं, फिर भी दिल नहीं करता बच्चे से पैसे मांगने का। आपको पता ही है, सारी उम्र दिया हो तो अच्छा, बच्चा खुद दे दे, वो तो उसकी तो वो तो बच्चा हीरा है, लेकिन आपका दिल नहीं करता है, तो उतना पैसा जरूर रख लेना जितना पैसा आप और अपनी वाइफ के लिए सफिशिएंट हो। और आजकल कुछ पता नहीं है कि सफिशिएंट अमाउंट क्या है। यू नेवर नो हाउ मच इज सफिशिएंट, क्योंकि कुछ नहीं पता, खर्च होता है तो मेडिकल में तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए भी खर्च होता है। मैंने अपनी वाइफ के ऊपर भी खर्च किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास सफिशिएंट पैसे हो, मांगना ना पड़े। ये अच्छा, मैं एचयूएफ पे आ रहा था कि एचयूएफ आप बिजनेस कर सकते हैं, और एचयूएफ में आप रोज हर साल का प्रॉफिट बांट सकते हैं। एक मैं बताया करता हूं कि 10 लाख से ऊपर एचयूएफ में इनकम हो, या अब तो 15 हो गई, तो बांट लीजिए करंट इनकम, क्योंकि आपको भी 30% देना है, एचयूएफ को भी 30 देना है, लेकिन एचयूएफ से बाद में बांटना मुश्किल होता है। एक चीज और बता दूं, अगर सारे मेंबर चाहें तो आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट एक ही को दे सकते हैं। इवन पार्टीशन में भी यही रूल है। आप जब एचयूएफ की पार्टीशन करना चाहते हैं, पहले तो बता दूं, कंप्लीट पार्टीशन होता है, पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं। एचयूएफ में पार्शियल पार्टीशन आफ्टर 31 दिसंबर 1978 इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। इनकम टैक्स डज नॉट रिकॉग्नाइज पार्शियल पार्टीशन, हाउएवर हिंदू लॉ रिकॉग्नाइजेस पार्शियल पार्टीशन। अंडर हिंदू लॉ यू कैन डू पार्शियल पार्टीशन, कि इतना बांट दिया, इतना रखा, ये प्रॉपर्टी इसको दे दी, ये हो सकता है पार्शियल, but under income tax it is not allowed. If you do partial partition, let me tell you, although the property will go to that person, but income from that property will continue to be taxed in the hands of the what you call the HUF. वो HUF के हाथ में टैक्स लगेगा अगर आपने पार्शियल पार्टीशन कर दिया। ये भी बता दो। अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं। सपोज मेरी HUF है, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ भी होती, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, या बेटा भी होता। ऑफ में इफ आई डाई इंटेस्टेट, या मैं विल करना चाहता हूं, तो मैं विल उतना ही कर सकता हूं जितना मेरा शेयर बनता है। हैड देयर बीन ए पार्टीशन, मेरी एचयूएफ में 2 बच्चे और मेरी वाइफ है, तो पार्टीशन होता तो कितना मिलता? 1/4। तो 1/4 ये ले सकता हूं। कोई मेरी मदर नहीं हो सकती मेरी एचयूएफ में, मदर लीनियर डिसेंडेंट होता है, या वाइफ होती है, असेंडेंट नहीं होता। अगर मेरी डेथ हो जाती है और मेरी एचयूएफ है, उसमें मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, मेरी डेथ के बाद मेरा 1/4 शेयर ही होता है। अगर 2 बच्चे, 3 है तो 1/5 होगा, 4 है तो 1, इसे कहते हैं पर स्ट्राइप। पर स्ट्राइप होता है पर ब्रांच, एक शेयर बीवी को, बाकी शेयर बच्चों, इक्वल शेयर। उसके बच्चों का बाद में देखेंगे, पहले बच्चों को। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मैं अपना शेयर 2 तरीके से दे सकता हूं। एक तो मैं विल कर सकता था कि जब भी मेरी डेथ होगी तो जो मेरा शेयर बनेगा वो मेरे इसको जाएगा, ये कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। विल अपना शेयर कर सकता हूं, अपना शेयर कर सकता हूं, अपने बच्चों का शेयर नहीं, अपनी वाइफ का नहीं, अपना शेयर। व्हाट वुड हैव बीन माय शेयर हैड देयर बीन ए पार्टीशन बिफोर माय डेथ, दैट शेयर विल गो टू माय लीगल हेयर। आई कैन ऑलवेज मेक ए विल ऑफ दैट शेयर, पूरी अचीव नहीं, उस शेयर की। सेकेंडली, अगर वो मैं नहीं करता तो उस केस में जो मेरा शेयर है वो मेरे लीगल हेयर को जाएगा इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो मेरा शेयर है। अगर मेरे 4 थे और मेरी डेथ हो जाती है और मैंने अपना शेयर की विल नहीं करी, तो 1/4 शेयर जो मेरा था, हैड आई बीन अलाइव, वुड गो टू माय लीगल हेयर ऑफ क्लास 1। क्लास 1 के लीगल हेयर, क्लास 1 नहीं होगा फिर क्लास 2, क्लास 2 नहीं होगा तो एग्रीगेटेड कोगनेट, फिर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाएगा।
मैं एचयूएफ में हिंदू सक्सेशन नेट लगा सकता हूं, ये मैं आपको बताऊं। अगर मैंने अपना शेयर, मेरा शेयर ओनली, मेरे बच्चों का नहीं, मेरी बीवी का नहीं, मेरा शेयर विल गो टू माय लीगल हेयर इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। लीगल हेयर कौन से? वही जो मैंने बताए थे हिंदू सक्सेशन एक्ट में, क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर एग्नेट्स, फिर कॉग्नेट्स, वो जाएगा। तो अपना एचयूएफ का शेयर, ये मत सोचना मेरी एचयूएफ है तो सारी मेरी है, अरे भूल जाओ, वो दयाबागा में है, वो दयाबागा में मतलब वेस्ट बंगाल और असम में है, और केरला में एचयूएफ नहीं है। प्लीज नोट, केरला में एचयूएफ बंद हो चुकी है 1976 के बाद, बाकी जगह एचयूएफ सेम है। मेरा शेयर उतना ही होगा जितना मैं अगर अलाइव होता तो कितना, पार्टीशन होती तो कितना मिलता। वो कैसे पार्टीशन होता सुनिए, जब भी पार्टीशन होगा कैसे होगा, सपोज मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ है और मैं पार्टीशन करना चाहता हूं, बच्चों के बच्चे भी हैं, वो बाद में देखेंगे। 1/4 विल गो टू द फादर जिसकी एचयूएफ है, 1/4 विल गो टू द मदर उसकी वाइफ को, 1/4 टू द सन, 1/4 टू द डॉटर। पहले 4 शेयर हो गए, पहली से कहते हैं ब्रांच पर स्ट्राइक, पर स्ट्राइक। अब जो 1/4 मेरे सन को मिला है वो अपने आगे बच्चों में बांटेगा, कंप्लीट पार्टीशन करने के लिए अमंग्स्ट ऑल द को-पार्सर। उसके को-पार्सर कौन है? उसका बेटा और उसकी बेटी, वो अपने आपस में बांटेंगे इक्वल रेशियो। उसको मिला था 1/4, 1/4 का इक्वल रेशियो क्या होगा? 1/12 उसको मिल जाएगा, 1/12 उसके बेटे को मिल जाएगा, 1/12 उसकी डॉटर को मिल जाएगा। अब जो उसके बेटे को मिला उसको भी बांटना पड़ेगा। 4 जनरेशन तक बढ़ता है और कंप्लीट पार्टीशन तब माना जाता है 4 जनरेशन तक। मैंने कहा जो शेयर बेटे को मिला वो अपने बेटा और बेटी के साथ बांटेगा, जो शेयर बेटे को मिला वो अपने बेटे और बेटी के साथ बांटेगा, क्योंकि वो को पार्सनल हैं। ये लेफ्ट साइड थी, इधर तो बेटी है, सिर्फ बेटी को शेयर बेटी को मिल जाएगा। जब भी पार्टीशन होगा पूरा मिलेगा, बेटी के बच्चों को नहीं मिलेगा, बेटी को मिलेगा। और बेटी अलाइव नहीं है और पार्टीशन हुआ है तो व्हाट वुड हैव बीन हर शेयर दैट विल गो टू हर चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन को मिल जाएगा। ये पार्टीशन है और पार्टीशन आप कर सकते हैं, लेकिन एचयूएफ नेवर डाइज। मैं अपनी फादर की एचयूएफ भी है, मेरी एचयूएफ भी है, और मेरा बेटा होता तो अपनी एचयूएफ भी बना सकता है बाय टेकिंग विल, बाय विल से या गिफ्ट से। मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी बना सकता है अगर वो शादीशुदा और उसका इशू है। मैं अपनी एचयूएफ का करता हो सकता हूं, मैं अपने फादर की एचयूएफ का करता हो सकता हूं अगर फादर अलाइव नहीं है और मैं एल्डेस्ट हूं। मैं अपने फादर, देखिए ये लिखा है एल्डेस्ट, लेकिन लॉ है कि अगर सारे डिसाइड करें तो एनी अडल्ट मेंबर कैन बी करता। ये जरूरी नहीं है एल्डेस्ट, अगर सारे मेंबर डिसाइड कर ले तो एनी अडल्ट मेंबर कैन बी करता। डॉटर कई बार अपना हक छोड़ देती है, नहीं नहीं मेरा भाई बनेगा, कर सकता। लेकिन अब ये 9/9/2005 के बाद है, 9/9/2005 से पहले की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो हक ही नहीं है। 9/2005 के बाद तो जो बेटे का, मैंने आपको बताया बेटी का जो है वो बेटी वो आ गया, उसका शेयर उसको। मैं एचयूएफ का ये आपको तरीका बता रहा हूं, पार्टीशन का बता दिया। पार्टीशन बेटी करा सकती है, बेटी के बच्चे नहीं करा सकते, बीवी नहीं करा सकती। तो ये जब भी कराएगी बीवी को शेयर मिलेगा। मैं अपनी फादर के, अगर मेरे फादर का एचयूएफ थी और मैं एल्डेस्ट हूं तो मैं अपनी फादर का एचयूएफ भी करता हो सकता हूँ, अपना भी हो सकता हूँ। अपनी बेटी के एचयूएफ का नहीं हो सकता, बेटे का नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर का हो सकता हूँ। क्यों? एचयूएफ मरती नहीं जब तक पार्टीशन ना हो जाए, एचयूएफ कभी नहीं मरती जब तक पार्टीशन ना हो जाए। सो मेरी ग्रैंडफादर की एचयूएफ है, मेरी एचयूएफ है, मेरे फादर की एचयूएफ है, मैं तीनों का करता भी हो सकता, कोई मना नहीं, कोई मना नहीं है। I can be a karta of my father's HUF, my grandfather's HUF, my great grandfather's HUF, but I cannot be a karta of my son's HUF. I cannot be. मैं अपनी सन की HUF में है ही नहीं, मैं को पार्सल हूं ही नहीं, क्योंकि तो लीनियर डिसेंडेंट से बनती है और असेंडेंट से तो बनती नहीं HUF। बेटे का हक बाई बर्थ है, बेटी का हक बाई बर्थ है, ये तो मैंने आपको बता दिया। HUF अगर मेरी है आप उसको हटा नहीं सकते। इंडिविजुअल में आप जो मर्जी करिए, अपने शेयर HUF का है वो आप जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन बाकी शेयर जो उसका पैदा होते ही मिल गया उसको, ए चाइल्ड इन द वूम आल्सो हैज द सेम राइट इफ ही इज बोर्न अलाइव। अगर एक बच्चा माँ की पेट में है, अगर जिंदा पैदा हुआ, चाहे आपने विल कर, चाहे आपने सक्सेशन एक्ट है, उसका पूरा हक है। फादर की डेथ हो जाए तो पूरा हक है,
पैदा होते ही उतना ही हक मिलेगा जितना फादर की एज में हुआ था. ही वॉज अलाइव, इफ अलाइव. पैदा डेथ हो गई तो नहीं. अगर फादर अलाइव होगा, सॉरी बेटा वूम में होगा और फादर की डेथ हो गई है वूम के वक्त, तो जो फादर का शेयर है सक्सेशन में जो मिलता था बच्चों को उसको भी मिलेगा अगर वो अलाइव पैदा हो गया. स्टिल हो गया तो खत्म. ये लॉ है. अगर दोनों आदमी हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ, और लेट से दो भाई हैं, अब उसका लीगल ईयर कौन होगा? मेरे बेटा बाप है, भगवान ना करे बेटा बाप ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई, तो इसमें लीगल ईयर कौन होगा? जो बेटे की डेथ हुई ना, वो माना जाएगा कि वो सरवाइव कर रहा था. जो जूनियर होता है वो सरवाइव कर रहा था, तो क्योंकि सरवाइव कर रहा था उस वक्त, बाप की डेथ हुई है, तो उसके बेटे के जो बच्चे हैं उनको शेयर मिल जाएगा, उनके बेटे के बच्चों को शेयर मिल जाएगा. मैं बता रहा हूं क्योंकि बाप की उम्र ज्यादा होगी, बेटे की कम होगी, तो दोनों की इकट्ठी डेथ हो गई, तो बाप का जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को मिलनी थी. बेटा ये माना जाएगा जैसे सरवाइव किया हुआ है, तो मिल जाएगा. लेकिन एक सक्सेशन एक्ट में मर्डरर को कोई हक नहीं होता. जो मर्डरर हो गया घोषित, उसको कोई हक. और एक और बात, अगर किसी ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, सपोज बेटे ने रिलीजन चेंज कर लिया, तो बेटे को तो हक मिलेगा चाहे रिलीजन चेंज कर लिया हो, लेकिन बेटे के बच्चों को नहीं मिलेगा. जी नहीं. बेटा था वो अब मुस्लिम बन गया है, हिंदू अनडिवाइड फैमिली का मेंबर है, मुस्लिम, कोई बात नहीं, बेटे को हक मिलेगा, लेकिन बेटे के बच्चों को नहीं मिलेगा. वो तो अगर वो मुस्लिम बनने के बाद पैदा हुए, मुस्लिम बनने से पहले पैदा हुए वो मिलेगा, जो मुस्लिम बनने के बाद पैदा हुए उनको नहीं मिलेगा. चिल्ड्रन ऑफ द सन who converted into मुस्लिम, और वो जो भी इस्लाम में आ गया या कैसे आ गया, उसको नहीं मिलेगा. जो चिल्ड्रन बाद में पैदा, ऐसे बेटी का भी है. अगर बेटी पैदा, बेटी का हक है, लेकिन बेटी के बच्चों को हक नहीं मिलेगा. अगर उसकी बेटी ने कोई रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, वो खुद जिंदा है, उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद मुस्लिम बनने के बाद या कोई और क्रिश्चियन बनने के बाद वो नहीं मिलेगा. ये भी आपको बता. क्रिश्चियन का इंटेस्टेट डेथ 1925 एक्ट में लिखा हुआ है. क्रिश्चियन का जो इंटेस्टेट डेथ का सिस्टम है, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस, वो 1925 एक्ट में लिखा हुआ है. हमारा अलग एक्ट है, लेकिन क्रिश्चियन का वही इंडियन सक्सेशन एक्ट में इंटेस्टेट का एक चैप्टर सेपरेट है क्रिश्चियन का. लेकिन जो मोहम्मडन होते हैं उनका तो शरीयत लॉ है, उनका तो शरीयत लॉ है, सेपरेट फॉर सुन्नीस, सेपरेट फॉर शियास. वो तो आपको मैंने बताया, वो तो विल भी नहीं कर सकते 1/3 से ज्यादा, जब तक कि सब जिनका राइट है उनसे परमिशन ना ले, वो कर नहीं सकते. तो मैं इतना ही बताना चाहता था. क्वेश्चन होंगे तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं. जो भी आपके क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मॉडरेटर साहब बैठे हैं अरुण जी, वो बात कर लेंगे, मैं बताएंगे, मैं जरूर लूंगा. थैंक यू जी, थैंक यू जी. सर एक दो क्वेश्चंस हैं जो हमारी तरफ से ही हैं, फिर हम लेते हैं. कि कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रॉपर्टी होती है और जब उसको ट्रांसफर करते हैं, चाहे मूवेबल मूवेबल हो, तो सब को-पास्टर्स की परमिशन चाहिए होती है. इज इट ट्रू? सर अगर विल है कि नहीं है? नहीं, अब विल नहीं, एचयूएफ है, एचयूएफ एग्जिस्ट कर रही है, कर्ता कोई प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, क्या उसको सब को-पास्टर का परमिशन लेनी है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं. कर्ता एक्ट करता है, नो डाउट. दया बागा में तो पूरे फादर को पूरा हक है, दया बागा लॉ में. मिताक्षरा में ही इज मैनेजिंग द अफेयर्स, ही इज ए राइट. वो गिफ्ट नहीं कर सकता. देखिए गिफ्ट नहीं कर सकता, कई करते अपने आप को गिफ्ट कर दे ना. एचयूएफ गिफ्ट ले सकता है, लेकिन एचयूएफ गिफ्ट नहीं कर सकता, रिलीजियस पाइस लिए करता है. होता क्या है मैं आपको बताऊं कि आप कह रहे प्रॉपर्टी बेची, तो अगर बेचकर आएगा किसके पास? इसी के पास आएगा. तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जो खरीदने वाला है ना, वो कहता भैया बस नहीं, मेरे सबके साइन कराओ, क्योंकि उसको डर है कि कल कोई खड़ा हो जाए, कह दे कि मेरा राइट था. या और माइनर चाइल्ड का तो बहुत दिक्कत है, कोई माइनर चाइल्ड मेजर होके कह दे मेरे बाप ने डिसीजन कैसे ले लिया, या ग्रैंडसन कह दे मेरे दादा ने डिसीजन क्यों ले लिया, ये मेरे अगेंस्ट जा. तो वो नॉर्मली कहते हैं कि सबके साइन करो. एचयूएफ की प्रॉपर्टी बिकती बहुत मुश्किल है, इसी कारण बिकती नहीं है कि कल कोई भी खड़ा, हाँ अडल्ट मेंबर है, सबसे साइन करा लो, जान छूट जाती है, लेकिन माइनर से साइन तो ऑलरेडी नहीं है ना, तो माइनर के टाइम में तो और दिक्कत होती है. मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम. अरे मैंने ये रवि जी ने आपको श्रीपद सिंघानिया, मधुपद सिंघानिया और गौतम सिंघानिया का बताया था. अरे उनकी एचयूएफ भी थी, एचयूएफ में वो ले गया अपना शेयर. अरे वो
HUF में उसने कहा चलो ठीक है मैं निकल गया, उसका जो पोता था खड़े होकर बोल गया तूने कैसे शेयर मेरे बाप ने ले लिया, मेरा शेयर बनता है, उसने भी केस कर दिया अपने दादे के ऊपर। तो भाई माइनर होते हैं तो खरीदने वाला लेट द बायर बी बीवेयर, उसको डर लगता है कि कल कोई आके लड़ने लग जाएगा तो सबसे साइन करा, और माइनर से तो और ही डर लगता है, ये कारण है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑथराइज्ड द कर्ता टू एक्ट ऑन योर, और कर्ता अगर कोई काम गलत करेगा तो ही तो गलत होगा, लेकिन हमेशा अच्छा यही रहता है HUF की प्रॉपर्टी में बाकियों से साइन करा लें तो अच्छा। बैंक में देखिए HUF में जब भी बैंक अकाउंट खुलता है तो पूरी स्टेट कर्ता के नाम देने पड़ते हैं सबके, और आपका रूल है जब कर्ता बदलेगा या सॉरी कर्ता के साथ को पार्सल के नाम देने पड़ते हैं, और कोई कॉर्पोरेशन एडिशन होता है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए बैंक को। बैंक कहता है वो दे दो, HUF की डीड दे दो। अरे HUF की डीड वीड नहीं होती, लेकिन आप एक MOU तो बना सकते हैं ना, MOU में या एफिडेविट तो दे सकते हैं ना कि ये मैं करता हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये इसके को पार्टनर है, ये ग्रैंडसन है, ये डिटेल देनी पड़ती है। HUF को लोन इसीलिए तो दिया नहीं जाता, बैंक HUF को लोन क्यों नहीं देते, वही झगड़ा है कि पैसे को वो कोई खड़े हुए कहेगा मैं क्यों जिम्मेदार हूं, और अब तो लॉ आ गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि HUF के केस में थोड़ा डर लगता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मूवेबल में तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, इमूवेबल में ज्यादा फर्क। और बोलिए सर। सर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अब न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं और डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उसमें डाइवोर्स के बाद का क्या सिचुएशन है? कोई सर डाइवोर्स में तो लिखवाया जाता है अच्छा। कि अब इसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं है, डाइवोर्स में तो लिखवाया जाता है अब कोई हक नहीं है, अगर आपने नहीं लिखवाएंगे तो उस केस में तो उसका राइट है, ये तो पक्की बात है। डिवोर्स में लिखवाया जाता है कि शी डजंट हैव एनी राइट, एलिमनी है तो एलिमनी डाल दो, लेकिन डिवोर्स में लिखा जाए कि इसके आगे से इसका कोई राइट नहीं होगा। लेकिन मैं ये बताता हूं, अगर एक बात और बता दूं, अगर डेथ हो जाती है आदमी की, उसकी बीवी ने दूसरी शादी करा ली है, बीवी का हक है उसकी प्रॉपर्टी में। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीवी ने दूसरी शादी करा ली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीवी का हक है। हाँ अगर बेटे की वाइफ ने करा ली है उसका नहीं, बीवी का है। बीवी ने दूसरी शादी भी करा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक तो बीवी थी ना जिस तक वो जिंदा था, तो बाद में ही शादी कराई है ना, उसका पूरा हक है, सेम राइट एज दैट ऑफ सन। ये मैं पहले बता दूं। चलिए आगे। शिवम क्वेश्चंस लीजिए कुछ। थैंक यू सो मच गिरीश सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मतलब पूरा हम जूम पर फुल कैपेसिटी पे थे, एंड यूट्यूब पर भी काफी ऑडियंस थी, एंड आई थिंक एवरीवन इज कनेक्टेड सो वेल। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लवली सेशन, अमेजिंग सेशन। थैंक यू, तो थैंक यू सो मच फॉर द प्लेथोरा ऑफ नॉलेज इन सच। आज तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहा मैंने। नहीं सर। चलो सर तो क्वेश्चंस पहले हम यहाँ चैट के लेंगे, बीच बीच में यूट्यूब एंड प्लीज डू दैट। First question is coming from Mr. Gopal Arora. Is it advisable to buy property in HUF, that is immovable property in HUF name? If it has been done in the past, what should be done to avoid future complications? मैंने अभी आपको बताया, यही सवाल तो अरुण जी ने पूछा था, बिल्कुल मैंने उसको जवाब दे दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम यही होती है जब बेचने जाते हैं ना, तो उनको हमेशा बायर फील्स कि भाई देयर में बी सम any other co-parcel who may come up and say that how did my father did or how my grandfather had no right to do that. So for that reason, because by birth the child has a right, by grandson has a right by birth, even the granddaughter. इसलिए कह रहा हूं उसमें झगड़े पड़ने की वजह से immovable property normally should be avoided in the name of HUF, but otherwise there is absolutely no restriction. You can own the property, but it is never in the name of HUF. It is kept in the name of member, कर्ता of the HUF. अरे कर्ता के नाम हो या मेंबर के नाम हो, प्रॉपर्टी HUF के नाम, HUF तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, वो नहीं होगा, कर्ता ही होगा, लेकिन उसमें लिखा जाता है कर्ता ऑफ सच एंड सच HUF या मेंबर ऑफ सच एंड HUF, और फंड्स किसके होते हैं? फंड्स HUF के होते हैं। चलिए। Next question is coming from Mr. Devendra Yadav. I have a daughter and son, both US citizens. Can they be a part of my HUF? Why not? उससे क्या फर्क पड़ता है? Whether you are in India, you are outside India. Even कर्ता कई बार outside India होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HUF को हम रेजिडेंट कहते हैं if it is wholly or partially controlled from India. कर्ता भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, बच्चे भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे हमारी HUF के वो माने जाएंगे बाय बर्थ। थैंक यू। चलिए आगे बोलिए।
Next question is coming from YouTube Live. Dr. Rathore is asking, can tax planning be done by formation of HUF? Is there any genuine advantage of making an HUF for father, mother, or married son? मैंने अभी क्या बोला, सारी तो कहानी बना दी, सारी तो बता दिया क्या फायदा होगा। अभी पूछ रहे मैं सीता को कौन ले गया था? अरे सीता को रावण नहीं ले गया था, मैं नहीं ले गया था। मैंने पूरी तो हिस्ट्री सुना दी आपको कि एचयूए बनाने से आपको टैक्स का फायदा होता है 1,87,500 रुपीज अगर फायदा है 10 लाख तक। अगर आप पुरानी रिजीम में जाएंगे, नई रिजीम में जाएंगे 2,62,500 प्लस 4% एक सेपरेट एसएससी क्रिएट होता है। और एचयूएफ क्रिएट करने के लिए मैंने बोला कि आप गिफ्ट ले सकते हैं। दो राठौर जी, अब आप तो रिटायर हो चुके हैं, अब आप एचयूएफ बना सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बनाइए, 2,51,000 की गिफ्ट ले लीजिए किसी से भी, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, बाद में मुझे मत कहना कि मरवा दिया सर आपने, मैंने कोई नहीं मरवाया। गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। चलिए सर, एक क्वेश्चन आया है कि कर्ता अपनी विल के अंदर ये लिख सकता है कि मेरे एल्डर चाइल्ड को कर्ता ना बनाया जाए और यंगर को नहीं। नहीं, कर्ता के पास कोई हक नहीं है एल्डेस्ट को ना बना। हाँ, सारे मेंबर डिसाइड करके किसी को भी बना सकते। ऑल द मेंबर्स में डिसाइड एनीबॉडी कैन बी ए कर्ता, बट ये कह नहीं सकता ये बेटा कपूत है इसको मत बना। ये हो ही नहीं सकता सर, ये हो ही नहीं सकता। बाई बर्थ राइट है, तो कपूत हो या सपूत हो, आपको सोचना चाहिए था। वो तो बाई बर्थ है। हाँ, वो रेलिंक्विश करना चाहता है, आप पार गद्दी नहीं दे सकते उसको। अपनी प्रॉपर्टी से पार गद्दी दे सकते हैं, एचयूएफ से पार गद्दी नहीं दे सकते। एचयूएफ से आप उसको नहीं हटा सकते, वो बाई बर्थ उसका राइट है, बेटी का भी बेटे का भी। ये सोच के चलना, बाई बर्थ राइट है। और उसका वही शेयर है जो मैंने आपको बताया, पर स्ट्राइप। ये पहले बता दूं। संजय सिंघानिया जी का एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग गिफ्ट के बारे में कि एचयूएफ मेंबर्स को गिफ्ट दे सकता है? जी नहीं देगा, वो पार्शियल पार्टीशन माना जाता है। आप करंट इनकम को बांट लीजिए अनइवन, लेकिन एक्यूमुलेटेड इनकम जो आपके पास पड़ी अगर उसको देंगे तो पार्शियल। हाँ, एचयूएफ अपने जितने पैसे कमाता है वो फैमिली पे खर्च कर सकता है। आप घर का खर्चा उससे कर सकते हैं, बेटे की शादी उससे कर सकते हैं, सब अगर एग्री करें, बेटी की शादी भी कर सकते हैं, लेकिन फैमिली एक्सपेंसेस कर सकते हैं एचयूएफ में। लेकिन एचयूएफ किसी को गिफ्ट देगा मेंबर को तो वो पार्शियल पार्टीशन माना जाता है, बिकॉज इट इज आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम। करंट इनकम आप अनइवन बांट सकते हैं, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर अनइवन बांटे तो सबका एग्रीमेंट हो तो बांट सकते हैं। थैंक यू सर। Next question. Next question we're getting from Mr. Rishabh Agarwal. Can we do IT, web services, businesses, manpower supply business under HUF? देखिए वो प्रोफेशनल नहीं होता। वो तो आप भी कर सकते हैं, मैनेजर रख के भी कर सकते हैं। प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन 44AA में डिफाइंड है इनकम टैक्स में। प्रोफेशन इंक्लूड्स लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेशन होता है, अगर खुद करे तो। आईटी है तो वो आ गया ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशन होता है, और वो खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला हो तो। अगर उसने अलग कर रखा है, वो खुद आईटी का नहीं है और आईटी की कंपनी खोल रखी है, तो कंपनी तो खोल ही नहीं सकता प्रोफेशनल, तो उसमें कर सकते, वो कर सकते। अदरवाइज आईटी भी आता है प्रोफेशन में। सर उसमें टीडीएस जो है वो अपना 194J में कट जाता, तो किस चीज का जी? सर जो आईटी सर्विसेज का जो टीडीएस है वो 194J में काट देते हैं, तो वो फिर अगेन कंसल्टेंट बिजनेस में शो हो जाएगा। देखो भैया, मैंने ये बताया कि अगर टीडीएस सिर्फ इंडिविजुअल का भी होता है, फर्म का भी होगा, कंपनी का भी होगा, कंपनी का भी प्रोफेशन कर ही नहीं सकती, राइट। तो कंपनी पर ये तो एचयूएफ है, ये तो एचयूएफ है ना, कंपनी तो नहीं, एचयूएफ है। एचयूएफ में अगर आईटी वाला मेंबर करता है तो ये ऑब्जेक्ट कर देगा कि ये तो इंडिविजुअल इनकम है। लेकिन अगर कोई और आपने मैनेजर रख के काम किया है, या खुद वो आईटी का नहीं है और आईटी की कंपनी खोल के बिजनेस किया है, तो ये बिजनेस है, करिए बिजनेस, कौन मना करता है। और उसमें टीडीएस कटेगा तो एचयूएफ का कटेगा, बात क्या हो गई। राइट, थैंक यू सर। और आजकल टेक्निकल सर्विसेज के लिए, आईटी के लिए अलग है, टेक्निकल सर्विस के लिए 5%, 2% हो गया है, अब वो नहीं रहा 10%। ओके सर, थैंक यू सर। Any other? Next question is coming from Mr. Pradeep Goyal Barnala. It is an extensive question. ये हमेशा सवाल पूछता है, बहुत पुराना आदमी है, मेरे लेक्चर हर एक सुनता है। प्रदीप के लेक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं, ये रोज सुनता है और ये बार बार भी सुनता है। मुझे समझ नहीं आया, यही टॉपिक उसने 2 बार तो सुन लिया है। अब वो मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ
कि वो जो आपको याद होगा कि एक पिक्चर चल रही थी, उसमें एक सीन आया, नहीं बोल रहा किससे का सीन आया, तो वो सीन आया तो गाड़ी पास हो जाती, और जब गाड़ी पास हो गई तो सीन नजर नहीं आया, तो वो बार बार पिक्चर देखने जाता था। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? बच्चा बैठा है सामने, इसलिए मैं बोल नहीं रहा, लेकिन बच्चे आजकल ज्यादा समझदार हैं। तो वो एक लेडी कपड़े उतारने के जा रही थी, तो वो सीन आ गया, गाड़ी पास हो जाए, तो वो रोज पिक्चर देखने जाए। क्या हुआ? कहता किसी दिन तो गाड़ी लेट आएगी ना। तो ये प्रदीप गोयल साहब भी यही करना चाहते हैं। क्या कर रहे हो गोयल साहब? आप बोलो, गाड़ी तो उसी टाइम पे आएगी, चिंता मत करो, आप ऐसे अलग पूछ लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन हमेशा बड़ा होता है। ये हर प्रोग्राम मेरा अटेंड करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन सवाल भी पूछता है, और इतना लंबा पूछेगा तो कर दूंगा। सर दीजिए, आपने पहले भी तो लेक्चर अटेंड किया इसी चीज के ऊपर। सर अटेंड किया है, ये क्वेश्चन फंसा हुआ है मेरा। मेरे पास इन हैंड है सर आजकल। आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी, कुछ खुला हुआ है आपका, आवाज ठीक नहीं आ रही। सर अभी आ रही है? अब आ रही है सर। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ना मेरे को प्रॉब्लम आ रही है किसी केस में, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पुट अप किया है। पूछ लो, लेकिन आप तो पीछे भी पूछा था, ये थोड़ी है, ये हर बार इनका सवाल आता है सर। और मैंने अगर दोबारा सवाल वही आया तो फिर तो गाड़ी वाला ही केस है, तो बता रहा हूँ। चलो बोलो बोलो बोलो। गुप्ता सर भी हंस रहे हैं यार, जवाब नहीं दे रहे। हंस रहा हूँ यार, बोलो ना यार, बोलो बोलो सर, बोलो सर। एक्चुअली इफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, सर ये मैंने दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे या बोलूं मैं यहाँ से? फिर आपकी आवाज गूंज रही है, जरा पहले ठीक आ रही थी। सर अभी ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, यहाँ से पढ़ेंगे या मैं बोलूं ऊपर की? मेरे पास सामने नहीं है, कर दो जरा, शिवम सामने कर दे, मैं पढ़ लेता हूँ। शिवम पढ़ के सुना देगा। हाँ जी, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, एक सेकंड। If any immovable property is purchased by HUF out of its funds, but purchase deed was registered in the personal name of Karta. In Jamabandi revenue records, the property has been entered in the name of Karta according to registered purchase deed. What is the status of this property for HUF? And at the time of further sale of this property, whether CG will be charged in Karta individual hands or in HUF? No, it will not be charged in individual hands. थोड़ी सी आपने मिस्टेक जरूर करी है कि you have purchased in the name of Karta. You had to buy in the name of Karta, but you should have mentioned there that it is HUF property through Karta. अब आपने गलती कर दी, लेकिन फंड्स किसके हैं? The funds belong to HUF. Since fund belongs to HUF, तो ये HUF की प्रॉपर्टी रहेगी। अब आपका ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने दिखाया क्या अभी तक इनकम टैक्स में, ये मेन पॉइंट है। सर इशू ये है, इनकम टैक्स में अगर HUF का दिखाया शुरू से ही, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स में आपने इंडिविजुअल दिखा दिया, तो फिर मैं क्या करूं? सर अभी गलत दिखाया आपने। आवाज आ रही है? आ रही है। और ऐसे है, अभी जो बायर है वो हमें चेक दे रहा है इंडिविजुअल नाम पे। कोई बात नहीं, उसके साथ एक अंडरटेकिंग ले दीजिए कि वो TDS जो काटे HUF के नाम काट दे, और आपको वो कर दे दे, और आपको मिल जाएगा बेनिफिट इसमें। आप इसको HUF की इनकम दिखा। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने अभी तक दिखाया क्या उस प्रॉपर्टी को, ये तो बताओ इनकम टैक्स में। अभी जो परचेज की थी वो HUF की बुक्स में है। अब जब फर्दर सेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्ता के नाम चेक ले लो, लेकिन उसको एक अंडरटेकिंग दे दो, TDS उसको दे दो, TDS उसके नाम काट दे। 37B रूल 37B पढ़ लीजिए, वहां अलाउड है और वो कर सकते हैं। वो अंडरटेकिंग दे दी और TDS उसका काट लेगा और ये कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। आवाज आपकी नहीं आ रही ठीक सर, आपकी कट रही है। शिवम भी पूछ ले, और कोई सवाल इसमें है? प्रदीप जी, पेमेंट आप अगर वो इंडिविजुअल में दे रहा है तो आप इंडिविजुअल से पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर वो TDS इंडिविजुअल का काट लेता है तो आपकी IT रिटर्न में प्रोविजन है, यू कैन यस, प्रोविजन वहां भी है, वहां पर भी प्रोविजन है IT रिटर्न में। नया मैंने तो डलवाया, मैं ही भूल गया कहना, वहां पे भी प्रोविजन है कि आप दिखा दो, वहां गया। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, next question is coming from from CA Narinder Vij. Banks usually creating problems for HUF as partner as HUF is not having any Aadhaar number. What are your views on this? HUF का आधार होता ही नहीं कभी, लेकिन कर्ता का आधार होता है। You can't be a partner as a HUF. The कर्ता becomes partner on behalf of HUF. तो कर्ता का आधार दीजिए। HUF कभी भी पार्टनर नहीं हो सकती। The कर्ता on behalf of HUF can become partner of the HUF, partner of the firm. वो बन जाए,
उसमें क्या दिक्कत है, 1000 दीजिए। और बैंकों को वैसे भी कुछ पता तो है नहीं कि एचयूएफ होती क्या है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर एचयूएफ पार्टनर है तो उस फर्म को लोन नहीं मिलता है, वो कहते हैं हम नहीं देंगे। एचयूएफ पार्टनर में शुरू करता ही पार्टनर है तो भी नहीं देते। चलिए आगे बोलिए। There are tons of questions coming, but थोड़े 2-3 और ही लेते हैं हम। नहीं तो टन्स आए हैं तो आप मीट्रिक टन ना लेना, आप किलोग्राम में ले लो जितने हैं। चलो। Mr. B.K. Tandon is asking, how can we increase the corpus of the HUF? Can members make contributions individually? I told you when you make a contribution, क्लबिंग ऑफ इनकम होगा उसने अमाउंट की, मेंबर जो देंगे, और वो क्लबिंग हो जाएगी। लेकिन इनकम क्लब होगी, इनकम और इनकम क्लब नहीं। तो आप उससे इनकम को क्लब करवा लो, उससे फर्दर इनकम जो आएगी वो क्लब नहीं हो। तो ये रूल भी तरीका है, अदरवाइज तो मेंबर से लेके कोई फायदा नहीं होता, क्लबिंग आए। लेकिन अगर उसको आपने एग्जेम्प्ट इनकम में लगा दिया तो क्लबिंग होनी नहीं। सर, सीए अनुराधा गुप्ता जी कॉम्प्लीमेंट दे रही, वी ऑल लव टू हियर यू सर सिंस 29 इयर्स। हाँ जी, 29 इयर्स। 29 ईयर मेरी उम्र बताइए। नहीं 29 ईयर से आपको सुन रहे हैं। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और बता दूं, सीए वालों को बता दूं, सीए एचयूएफ का कर्ता नहीं हो सकता अगर सीए बिजनेस कर रहा है, वो कर्ता अगर एचयूएफ बिजनेस कर रही है। मैं भूल गया कहना, जो सीए बैठे हैं, अगर सीए बिजनेस कर रही है तो वो कर्ता नहीं हो सकता। दोबारा बता दो जी, दोबारा बता दो लोगों को। सुनो, अगर एचयूएफ बिजनेस कर रही है तो सीए अगर उसका कर्ता नहीं हो सकता। चार्टर्ड, क्योंकि एचयूएफ की कोई तकलीफ नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हमारे गवर्नमेंट नॉमिनी बैठे हैं, सुन रहे हैं, रवि गुप्ता जी, यही डिसिप्लिनरी कमेटी में एक्शन ले लेंगे आपके अगेंस्ट, आपने बिजनेस कैसे कर दिया। इवन बिजनेस शेयर का भी नहीं कर सकते। अरे सर, शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस नहीं और वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते एफओ का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, क्योंकि वो तो होता ही बिजनेस है, वो तो होता ही बिजनेस है। सो प्लीज कर्ता बदल दीजिए, चाहे कर्ता कुछ नहीं करता, कर्ता फिर भी कर्ता होता है, ये मैं आपको बता दूं। सीए बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब कर्ता, अगर एचयूएफ बिजनेस नहीं कर सकती अगर सीए उसका कर्ता, ये बता, बदल दीजिए कर्ता। लेकिन वाइफ कर्ता नहीं हो सकती, वाइफ कर्ता नहीं हो सकती। तो मुझे किसी ने पूछा, सर हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ किसके, दोनों माइनर चाइल्ड हैं, तो क्या होगा, माइनर चिल्ड्रन है दोनों, अब क्या करें। मैंने कोई बात नहीं, नेसेसिटी है, टिल द चाइल्ड गेट्स मेजॉरिटी, नेसेसिटी है, इसलिए मदर विल बी द मैनेजर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ। ये डिसीजन है, मदर विल बी लुक आफ्टर, बट शी कैन नॉट बी ए कर्ता ऑफ इट। शी विल लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ टिल वन ऑफ द चाइल्ड गेट्स मेजॉरिटी। जिस दिन मेजॉरिटी हो गई उस दिन चाइल्ड कर्ता बन जाएगा, एचयूएफ कर्ता वो बन ही नहीं सकती, वाइफ कर, डॉटर बन सकती, वाइफ कर्ता नहीं हो सकती। ये भी बता दिया मैंने। अगर 2 बच्चे ही रह गए और दोनों माइनर है, 2 बच्चे, दोनों डॉटर या दोनों बच्चे हैं माइनर हैं, तो कोर्ट से आप अपॉइंट करवा सकते हैं गार्डियन। कोर्ट कैन अपॉइंट गार्डियन ऑफ दैट एचयूएफ, और वो एचयूएफ कंटिन्यू कर सकती टिल द चाइल्ड गेट्स मेजॉरिटी। ये भी हो जाता है कि माँ बाप की डेथ हो गई, दोनों बच्चे माइनर है और बाप की एचयूएफ थी, और बाप की एचयूएफ, तो चिंता मत करिए, गार्डियन अपॉइंट कर देता है कोर्ट, अंडर वो तो रूल है, और कोर्ट अपॉइंट कर देगा गार्डियन, तो वो एचयूएफ चल सकती है। सर मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, सर बड़े टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं आपको। सर एक क्वेश्चन आया आपकी बात पे ही, तो नाम नहीं मैं बताऊंगा। इफ ए सीए इज होल्डिंग एन ऑफिस विद अकाउंटेंट्स एंड क्लर्क्स doing accounting and other non-audit service, can he use his HUF firm? No. HUF बने, आप करता मत बने, करता मत बने, जो मर्जी करे, आप करता नहीं होगा। He cannot be a करता, ये लॉ है। मैं HUF के लॉ में थोड़ी लिखा है ये इंस्टीट्यूट तंग करेगा भैया, उनको पता लग गया, वैसे सब कर ही रहे हैं, बताते नहीं है, कर तो रहे हैं, मुझे पता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन तो कई कर रहे हैं और बताते नहीं है। लेकिन भैया रिटर्न कहीं भाई पकड़ी गई ना, और वहां पर देखा होगा कर्ता आपने लिखा है और वहां बिजनेस इनकम नजर आई और किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो आप फंस जाएंगे, मैं बता। इसलिए हटा दीजिए, या बिजनेस मत करिए, या फिर इंस्टीट्यूट से परमिशन मिल जाती है, ये भी बता दूं, परमिशन ले लीजिए कि मेरी मजबूरी है सर, परमिशन ले लो और फिर अपॉइंट कर दो किसी मैनेजर को। सर इसको रैप अप करें।
आप ये आपके ऊपर है, मेरे को तो शाम को 5 बजे तक वो बोलता रहूंगा, सवाल का जवाब देता रहूंगा। ये तो आपके ऊपर है कब बंद करना चाहते हैं। आपको लंच करना है, मुझे भी करना है, नो डाउट। अभी टाइम है, 1 ही बजा अभी, तो आप पूछ सकते हैं, कोई अच्छा सवाल हो तो पूछ लीजिए। अच्छा है तो कॉर्पोरेशनल को लोन दिया जा सकता है इंटरेस्ट फ्री, या लोन तो किसी को भी दिया जा सकता है, और इंटरेस्ट लेके तो बगैर इंटरेस्ट के भी दिया जा सकता है, लोन तो दिया जा सकता है। डीम्ड गिफ्ट का इशू तो नहीं आएगा? ना 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 ना, देखिए सेक्शन 56(2) में लोन जो देते हैं वो कंसीडरेशन है, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तो लॉ डिसाइडेड है। रीपेमेंट ऑफ लोन इज अ कंसीडरेशन, इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं अपनी वाइफ को लोन दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों को लोन दे सकता हूं, नहीं इंटरेस्ट चार्ज करता, मेरे को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नो नो, नथिंग लाइक दैट। एक और क्वेश्चन आ रहा है, मिस्टर शिकरे इज आस्किंग फ्रॉम फेसबुक लाइव, इफ सन हैज HUF ऑलरेडी, कैन फादर फॉर्म अ न्यू HUF? क्यों नहीं होता? फादर अपनी HUF बनाए, बेटा साथ में आ जाएगा। वो उसकी अपनी HUF है, फादर की अपनी HUF है, क्यों नहीं आ सकता? अब फादर को बड़े देर लेट ख्याल आया कि मेरे बेटे की HUF तो मेरी क्यों नहीं है, भला उसकी कमी मेरी कमी से ज्यादा सफेद क्यों है? यही वाली बात है भाई ना। बनाना चाहे तो बना ले, मुझे कब मना किया? फादर बना सकते अपने बेटे के साथ, वो कॉर्पस ले ले, फादर की बन जाएगी, बेटा की ऑलरेडी है तो है। ये तो उल्टे जमाने हैं, उल्टे बास बरेली को फादर से बेटा अपना अलग बनाता है, ये बेटे से फादर बना रहा है। बना लो सर, कोई मना नहीं। प्रमोद शर्मा जी पूछ रहे हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर HUF इज फॉर्म्ड। HUF इज फॉर्म्ड, ये कैसे हो सकता? हाँ। फादर के बाद HUF के बाद नहीं होता, मैंने आपको कैन बोला। मदर भी, आगे क्वेश्चन और आ रहा है, कैन मदर बी ए मेंबर ऑफ HUF लिविंग ब्रदर? फादर की अगर HUF थी तो मदर ऑटोमेटिक मेंबर होती है, वाइफ ऑटोमेटिक मेंबर होती है, लेकिन फादर ने मरने के बाद थोड़ी HUF बनेगी फादर की। फादर की तो जिंदे में ही बनेगी HUF, और वाइफ उसकी ऑटोमेटिक होती है। शी इज ए मेंबर ऑफ HUF, बट शी विल गेट शेयर ओनली व्हेन देयर इज ए पार्टीशन, बट शी कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। शिवम? Yes. Another question is, Dr. Rathod is also saying, thank you very much sir for the answer. But to have interest income हर of चीज में हंसे हैं। हाँ जी, शिवम दोबारा पूछो, शिवम दोबारा पूछो। if HUF conducts commission income through staff, then is there any objection? सर देखिए, मैं 31 तारीख वाली कमीशन कह रहा हूँ। अगर आपका बिजनेस है जहां पर आपने एक एजेंसी ले रखी है और आप माल बेचते हैं और उसके ऊपर कमीशन आती है, तो आप पक्का आड़ती हैं, तो क्या प्रॉब्लम? वो तो बिजनेस है। ये कच्चा आड़तिया वाली कमीशन की बात कर रहा हूँ कि मतलब है एंट्री ले ली बस, और कुछ नहीं। समझ में आया मेरा क्या मतलब है? अगर आप बिजनेस खुद कर रहे हैं तो कमीशन वाला जो काम है, जैसे आप रेंटल का कमीशन लोगे तो वो तो आप ही की है, HUF की थोड़ी हो जाएगी कि आपने जी मेरे प्रॉपर्टी डीलर हूँ, HUF का प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी होगा, वो तो नहीं माना जाए, वो नहीं माना जाए, क्यों? कमीशन का काम करता है। लेकिन अगर आपने पक्का आड़तिया है, आपको बिजनेस एजेंसी बिजनेस है, वो कमीशन लेता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो कमीशन ही है। वो जो डिस्काउंट कह लो, कमीशन कह लो, वो तो अलाउड है। लेकिन मानते नहीं है, ये कहते हैं ये वो वाले वो जो कमीशन लेते हो 31 मार्च वाली या वो वाली जो बोगस टाइप की लगती है, वो कहते हैं ये तो आपने शो काज नोटिस आएगा, व्हाई दिस इनकम बी नॉट टैक्स इन योर इनकम, तो एक बाद आएगा शो काज नोटिस, ये तो आता ही रहता है। चलिए आगे बोलिए। Rajesh Agarwal sir is asking, after dissolving the present HUF, राजेश अग्रवाल जी को खुद पूछने दीजिए। हाँ जी, I have unmuted Rajesh sir. हाँ जी राजेश जी आइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रेजेंट यदि HUF को हम डिसॉल्व कर दें तो क्या सेम अगेन फॉर्म हो सकती है विद द सेम मेंबर विद द सेम करता? पहले तो पॉइंट होता है कि HUF को डिसॉल्व, वही पार्टीशन कहते हैं। नंबर पार्टीशन, फुल पार्टीशन क्या है? पार्टीशन में आप किसी को निकाल के रीयूनियन कर सकते हैं। रीयूनियन सारे करके दोबारा नहीं, कोई एक तो निकले फिर रीयूनियन कर ली। अच्छा। अरे पार्टीशन तो तभी करते हैं जब झगड़ा होता है यार, वैसे कौन करता है पार्टीशन? सर डिसोल्यूशन के बाद, आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टीशन ही बोला जाता है, यहाँ डिसोल्यूशन वर्ड नहीं है, पार्टीशन ही है। उसको हम डिसोल्यूशन बोल देते हैं तो पार्टीशन ही है। सर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, इट इज अ पार्टीशन। ओके सर, ओके। है कि अगर आपने एक बार फुल पार्टीशन कर दिया, उसके बाद वही सेम मेंबर्स दोबारा बना सकते हैं क्या सेम HUF? नहीं, सारे नहीं, एक आध जाकर ही रीयूनियन हो सकता है, रीयूनियन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए और कोई सवाल?
CA Narendra Garg is asking, sir, what is the name of the case which you were mentioning, Anu Gupta versus, to get the decided case? Anu Gupta नहीं था, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता. सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता में ये लिखा गया कि डॉटर अगर एल्डेस्ट है तो शी विल बी ए कर्ता. डॉटर विल बी ए कर्ता. जरूरी नहीं है कि एल्डेस्ट चाइल्ड होगा, एल्डेस्ट सन नहीं. वो अगर आपस में डिसाइड करे अलग है, लेकिन ये सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता की जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की. ये मैंने आपको बताया. Sir, we are near to 1 Okay, PM. sir. So I request Dr. Ravi Gupta ji, President of the Society, to give your closing remarks and thank you. Thank you, Arun. Thank you, sir, for an excellent session today. And I think after this, there should be no questions on succession. अब आप अगला वेबिनार करेंगे अगर डिफरेंट ऑडियंस में, तो आई थिंक क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए unless until the audience is different. The importance of succession planning, importance of writing a will. If you do not write a will, what are the consequences? आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से explain कर दी हैं. And I think it has been an excellent session for all the participants. Thank you so much, sir. Thank you all the participants for being such a lovely audience. And I think we will continue with this series of webinars. And soon we will come up with another topic of mutual interest. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Take care, everyone. Please stay healthy. Take care. अभी भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, मैं बता दूं. अनलॉक हुआ है, लेकिन अनलॉक में भी लॉक रही है ज्यादा. रवि जी ने तो बंद करवा दिया मेरे को. मैंने कहा या रवि जी ने कहा, हमने तो बंद कर दिया ऑफिस दोबारा. अब दोबारा खोले, टाइम लगेगा. मेरे ऑफिस में बैठा हूँ. आप तो ऑफिस में, सर आपका घर और आपका ऑफिस एक ही बात है ना. अब ये अरुण जी बैठे हैं, वो कहेंगे मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ. अरे वो घर ही तो है उनका, तो ऑफिस क्या बना हुआ. ये तो यही कहेंगे, घर के अंदर उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, तो आपका ऑफिस होगी. अरे सर ये शाशनी जी भी दिखा रहे हैं उनका घर, वो देखो लाइब्रेरी. नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ सर. अच्छा, ऑफिस आपका, हाँ अब तो आपका ऑफिस दूर हो गया. पहले घर के अंदर था, अब आपका ऑफिस दूर है. मान लिया. ठीक है. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. प्लीज टेक केयर. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks a lot.